So, guys, we will actually kind of begin. So, welcome to the first live. The idea is mostly to reach out to everyone who has been trying and working with AI filmmaking and content creation. So, fundamentally, the idea of tutorial right now is not settling in our heads, but like our DMs are full of people who want to learn. And that is why we came up with Saturday Night Live altogether. The idea was because my process generally comes from sharing what right or wrong we have done and more problem solving based than teaching based. So this is sort of an experiment. And of course, I need support of all you guys at the end of it with feedbacks and understanding of what helped, what did not. This is just a start, and we are trying to figure out how to share as much knowledge as possible. We don't want to block ourselves behind a paywall or anything like that. The fundamental is to create an open space where we can discuss AI content, where we can share AI content, where we can look at each other's work. And that is the fundamental reason why we are doing this. So we will be open to all your questions, what you have been trying, would love to know that. And without like wasting a lot of time, I would actually jump into some of the questions that were received in our group altogether. And one of the questions was from Shubh Mumbai. I don't know if Shubh has joined yet, but Shubh's question was very blanket, and I think that's a very good question to start with. So what he had asked was, what's the process of writing, then text to image, then image to video, and eventually caption and VO. So I'll just break it down in simple part. Writing is something which I still feel the base writing should be done by you. You can definitely use different AIs, chatbots, LLMs, whether it is Claude or whether it is Grok or GPT or Gemini to enhance your writing. But of course, the when the core material is written by you, that's much better altogether. The second thing is the writing part we'll discuss with Bharat sir, who will be joining us on the live in next 10 minutes. He's already here, but after the intro, we'll get to that part of it. When it comes to text to image, image to video, and caption and view, I am assuming Shubh was trying to know about the AIs we are using. So I'll quickly just run through that because that is a constant question that I think is there in everyone's head, and we can just move beyond that in the very starting phase of it. So for text to image, currently we are using two types of models altogether. The first one is a specialized model when we are looking for something specific. So if you look at our work Miran or you look at our work Akhara, both are different visual palettes. So we use different AIs for different visual palettes. When it comes to something fantasy, definitely we go to Midjourney. When it comes to something realistic, then you have Google Imagen and Flux. These give you very realistic images. And when it comes to realism in the 90s vibe or very vibe-based realism altogether, you have something like Higgsfield Soul and other such AI, which is giving you a very templatized but very short sort of output. So again, just to repeat, fantasy we go to Midjourney, realism we go to Flux and Imagen, and specialized shots and very moody or something like that, if we have to we go to Higgsfield Soul. But here there are two types and two ways you can work on it. Now, one is these specialized models where you are generating each frame, but I also use Gemini and GPT sort of language models for it. Now, what language model does for you is solve a big problem that is of consistency, because when you work on language models, that is Gemini, GPT, and working on that, what happens is you can create sort of a conversation of what's not working in the image, what's working in the image. If the character is different, you want to revert to a character before. So many times when we are working on consistency based projects, especially ad films, we did something for FinServe. We are working on a couple of more ad films. During that phase, we tend to use the language model. So Gemini comes with your Imagen as the base generator, and ChatGPT comes with Sora as your base generator. So you can also use these two, especially when trying to maintain consistency. If you're trying to generate consistency in specialized models, then Midjourney has something called Omni Reference that helps you out. Flux has a character trainer that helps you out, and Higgsfield also has a character trainer now, and it is pretty decent. So that is text to image. When it comes to image to video, again, what AI you are using for what purpose is important. We use Higgsfield for VFX. We use VO3 and Kling 2.1 for native audio. Native audio is when your video is generated with audio. Runway Act 2 is very good again when you are working with AI avatars. So Runway Act 2, Hydra, and Hagen are three things when you are working with AI avatars.
If you actually want to develop a conversation or something, you can try multi-talk. It's open source right now, so it's not a very easy interface, but it helps you generate multiple characters talking. So that is one. So again, as I said, the purpose of these things are different. Anyone who is part of our community and the online server on Instagram, you will be receiving a cheat sheet of sorts of what AI does what for us at this moment. So you do not have to worry because we will be providing that on the group. When it comes to captions and VO, now there are multiple options. What we use for captions is Canva AI. Canva is actually has a very interesting AI ecosystem when it comes to design and captions and certain things like that. We also for audio, there are a couple of AIs that we use. One is Eleven Labs. That is something you have heard about all over the internet. The second one is Lovo AI. Now, Lovo AI is interesting because you can practically use it for free. So what Lovo does is it generates your audio without requirement of any credits. And what we do in the next stage is it won't let you download without credits. But what you can do is just play the audio and screen record. You will get the audio. So if you're looking for something to try out and free model, you can go to Lovo and kind of cheat your way around. Basically, these are few AIs that we have been using. If there is any question specific to a particular AI, you can post it in our server group, and I will try to answer them offline as well. There's another question I would like to answer before I get Bharat sir in. Is an important question, actually split into two parts. So Jitu Lives had asked about monetization opportunities. Now, I understand that as AI creators, this will become one of the prime importance. This will become of prime importance eventually. So there are three modes in which you can monetize right now. There is specialized platforms for it. Like one is the obvious one. Now there was a lot of discussion around YouTube demonetizing AI videos, but actually it's not the accurate case. What YouTube is doing is it's demonetizing all the low effort content, even in live action and in AI. So basically, if you are thinking that I will use an automation pipeline and there is a video that will be generated and some images put on that, that will be demonetized. But if you have a proper work line and you're working on something, that's not something that's going to be demonetized immediately. I mean, there's more clarity needed on that. But apart from that, there are specialized platforms. We are in talks with Zingroll right now, and we are in talks with Moj currently. Both the platforms are offering some sort of paid remuneration around, whatever content you put on that. The revenue models, even to us, it's not clear. We are still in discussion. Once we understand the revenue models, we will be sharing that with you. One more thing that you can do is something that we are starting for our platform. That is, we are creating a freelance platform. Consider this a small plugin, but AI Theater will have a freelance program where whatever work is coming to us, we will be like kind of distributing it also among some of the very brilliant people we have in our community. So even that will generate. Like we are ourselves trying to generate some revenue for you guys if you're doing something good. So that was one thing that Jitu had asked, and it was something which I thought is important, but not part of our today's pipeline. So wanted to answer that on the top. I still have 6 minutes before Bharat sir joins in. 5:15 is his time. So there's another set of questions which is not part of today's discussion, but in our group, SBP Photography had mentioned very specifically about this. Also, Met IIT Nashik had mentioned about it. So basically, there are two parts of this question. One is AI avatars for marketing. Now, AI avatars for marketing, the best ways to make these AI avatars are currently three. Uh, Heijin does a brilliant job. There is an Avatar 4 model for Heijin, which we have tried, and it is pretty decent, especially when you're trying to create an ecosystem of virtual influencers. So you can definitely check Heijin altogether. Apart from Heijin, you can also go to Hydra. Hydra, if you can create your consistent characters, Hydra Labs is doing some very good job with body motion and other stuff. And there's something that got released yesterday, which again is a game changer in many ways. So if you're okay with coming out there and talking in your own way, like even if these are the hand movements that you exactly want in your video, Runway has come out with Act 2. Now, whoever has ever asked me about AI software, I've always said that Runway is a scam. And for most part of Runway, it is a scam. Runway's lip sync feature is terrible. Runway's motions are terrible. But when it comes to Act 2, that's a game changer. Like that is one reason why you can subscribe to Runway. Will be putting out some tests very soon. So the Runway basically has Act 2 where however I'm speaking, it can just
change my character into someone else. So if you're looking for something which is animated or something unrealistic, even for the Google VO3 videos, there are certain concepts that can be taken to runway. So you can definitely check that out. So that was regarding AI avatars on with respect to marketing. There was a second question that was asked that was by SVP Photography, which is about how to use this for marketing of small businesses. Now, most of the discussion will teach you how to make it, but when it comes to marketing, since we'll be discussing film part more, when it comes to marketing, we work on a very three-act structure, and it has worked very well for us. Now, the three-act structure is basically three different shots. So if you are doing something on VO3, think in three shots rather than one single shot trying to convey your message. The in these three shots, the first one is the setup or the hook. That can come from any traditional hook. It can be something breaking. It can be someone just uh, talking about something humorous. Basically, whatever the hook of your video would be. The second one is where you generate curiosity. So you do not try to talk about the brand on the top because that makes people swipe. So hook them. The second part is curiosity, the seed, the idea of what it is about, and the third shot is generally the payoff. Now, this is a very simplified structure, and we can discuss about this later in some other life. But that is the basic structure, which kind of gets you what you want to deliver as a message to your audience. Also, makes sure that they watch the entire length. So that is one hack to use. Again, whatever the more solid answer to this question will reach the group altogether with what I'm exactly trying to say. Uh, we will be adding Bharat sir and getting into the planned discussion. So, but before that, since I think we are stabilized on the number of people attending, let me quickly introduce myself as well. I am Priyath, and I've been working in the industry since last 12 years. I have directed multiple formats. There are a couple of shows you might have heard, OMG, Mera India. I've done ad films for couple of brands, Parachute, Malabar. I've done a documentary with History TV recently in January. So kind of I come from the industry. I started with theater and then there's a multimodal journey of mine because I have an audio show on Audible as well. So that kind of helps me because all the formats I have done till now kind of coincides and gives me an opportunity in the AI field where whether it is sound, whether it is writing, whether it is editing, there is a combination of all that is required for AI filmmaking. And when I say AI filmmaking, I would like to actually kind of call upon stage Bharat sir to join us because he is much more experienced than me. Since 20 years, he has been in the industry, and he will be joining us very soon. So I would basically just open up with this. The discussion we'll be having with Bharat sir, which is about how to use AI and filmmaking knowledge for AI filmmaking altogether. Hello, Bharat sir. Yes, Thank sir. you for joining and taking out time. Am I? You are audible. It's breaking a little. That will settle down, I think. But yes, you made hear you. Your voice to hear you. Can you hear me clearly? Hello. Can you hear me clearly? Yes, yes. Now I can hear. Now I can hear. So So, yes, I mean, few of your works we have featured on our page, and we are really in love with it. thank you. So, we are really glad that you could take time and join us for this discussion. So, as you had mentioned in the group as well, that filmmaking in AI is something that you would like to discuss upon, and I think that is the best way to set off this live. Reason being, the tools is something which I feel everyone will figure out, but the sense is something that comes from old school cinema and you have Yeah, been in the industry for 20 years. So I would really love to know about filmmaking in AI and your journey till yeah. now and how Sure, does it work for you altogether. sure. So I am a cinematographer. Basically, I'm an engineer by qualification, and but I've never worked as an engineer. After my engineering, I've done a diploma in camera and lighting techniques. Then I have worked in the industry in the prestigious group BF Films in late 90s, 97, after 98, I 99. was checking it out. You have done Mahabharat Yeah, also. So Mahabharat that is Katha, something we second all part, have seen. Mahabharat Katha, yeah. Yes. So I'm 49, I'm 49 years old, but I have done, I just passed my college that time, and I was assistant to Mr. Dharam Chopra. So I started with huge sets, 100 people, with 100 junior artists, 200 junior artists doing the fighting scenes for Mahabharat. You must have seen the huge sets. So Hmm. my concept, my journey started from that. Cinematographer and everything to me comes from light, shadow, cameras, human presence, and sets. So all my Yeah. stories, they always revolve around human beings. I pick up the stories around me. I find it very fascinating. I mean,
I have grown up by seeing Doordarshan in mid 80s. You know, the Karamchand, Right. Mungeri Lal ke Sapne. So I was introduced because I knew nothing about AI. I have worked on Photoshop for past 20 years, but for this text to video, I mean, this was new to me. And only 50 days back, one of my college seniors introduced me to text to video. I knew nothing about Right. it. And it was, you know, it was so fantastic when I just inputted few lines and I saw the visual come to life. I was stunned. Although it was not perfect, but yeah, it was something, you know, unimaginable. Hmm. So my stories, you know, they all like in past 50 days, I've created few shots, 4 or 5 shots, and I've tried to explore grief, loss, joy. Basically, it's all about human emotions. And I think that it's not that AI will take over us. Basically, it's working with AI to make AI as your assistant and working together. It's not about AI or machine. It's humans with the machine. I think that should be the one should not fear that AI will take our jobs. So So, sir, basically, I had, by sorry, please continue. yeah, please. Basically, I was actually thinking that in this process, if you can also just add how your process has been, because you have worked on text to video more than using images to generate videos Yeah, out of it. yeah, And yet yeah, you have been yeah. able to keep your characters I'm coming to consistent that. Yeah, and create a world that has a very uniform visual feel to it. So if you can yeah. just incorporate I'm that. coming to that. So I basically I start with exploring a one-line idea. So Hmm. once the idea is fixed, you know, I am satisfied with the idea. Yes, I can work on this. This is a good story. Then I do not create the script. My idea is different. I mean, if there is some director like you have worked in the industry, you first Right. work on the script and then you start creating the Absolutely. visual, the storyboards. My thought process being a cinematographer, you know, when the one line idea strikes me, I start visualizing the shots. So I create the Right. story around those shots. My process is something different. It's not a perfect process, but I built my story around shots. So what I do is I visualize the shots, then I create the character. So for Hmm. character consistency, like the most of the people are asking in your group. So Hmm. first of all, I in my prompt I describe the aspect ratio. Like I'm working in scope 2.39:1. That is the Right. first thing I add to the prompt. My aspect ratio. But I've seen that if you use this aspect ratio thing in Gemini, it does not work. Right. Sometimes it works and Hmm. sometimes it does not work. But if you work in Flow, Right. 99.9% it will always follow your aspect ratio. Then I define the character, like I define the age, gender, Hmm. race, and outfit style for like this Hmm. Naksh. Because I have seen that this flow and because I've only worked on Google VO3 for voice, I'm working on 11 Labs. Right. So Google VO, I mean, I've seen that it works very good for characters centric to Kashmir region, not Jammu region, Kashmir region. Hmm. Metros Hmm. like Mumbai. I saw the Google View when it was launched in India. They particularly showed the stills, I mean, the clips from the Mumbai itself. Then I Hmm. created a video, and that was a hit. I mean, I got more than 40,000 views in 1 week on my Mumbai video, and Hmm. that was fantastic. Because those images, whatever I write, it most of the time, it for 95% of the time, it creates exactly what I want it to be in that video. So for character, it starts with age. Basically, I'll read out my prompt just for example. Right. You can paste Aspect it in ratio the is comment also if possible, so everyone can because read the prompt I what have you're my talking about. laptop and I'm And online through the cell phone. Meghna will do it for you. No worries. But you can Okay. start talking. Yeah. Okay. So basically, for character consistency, see, if you see closely, there is a variation in the face. I mean, cheekbones Absolutely. slightly, But the thing is, the styling, the outfit, the color grade, the mood, the lighting, if that is consistent, viewer, that things pass. I mean, nobody, no, because if So, you are into so the when story, you dropped off the call, I was saying the same thing that be caricaturish, like yeah. I heard just you. give it some I heard you. distinction. Yeah, I mean, yeah. I heard you. So that consistency, yeah. So like this prompt, like a woman, a Kashmiri woman in her early 30s with bold and calm features. Her eyes carry both memory and restraint. No visible tears, only silent intensity. Skin tone natural and slightly weathered by sun and hardship. She wears a flowing deep dupatta, saturated and well draped over her head and shoulders. Like basically, what I do is I define my prompt to GPT or Gemini. I write in detail. Then I Hmm. get the VO3 compliant prompt from that software. So basically, Right. I input. Sometimes when Gemini or GPT gives me the prompt, it's not what I want. So I start arguing with, like a human person. I start arguing with the. You get a VO compliant. So basically, Right. I define the character completely. Like she wears a flowing dupatta, blah blah, and underneath a dust-covered traditional salwar kameez is desaturated, earthy tones. Her hands are scarred from labor, nails chipped, and her
palms stained dirt. Her footwear is a striking contrast, heavy military boots with traces of ash and dried blood. Hair is dark brown, loosely tied or windswept. Her movement is slow, deliberate, and rooted. This is very important. Never Hmm. frantic, never passive. She walks as if she's been here before and will return again. Her red dupatta should always remain the central visual anchor amidst the desaturated, warped, ravaged environment. So this is the character prompt. After the aspect ratio, I use this character prompt in every prompt where this lady has to be there in that shot. If she is not Exactly. there, I will Yes. not write this prompt. I consistently write the same prompt. The second thing I do is I define the environment, Hmm. location, sunlight, what kind of light is there, what kind of things, what kind of, it's indoor, outdoor, what kind of shadows are there, whether fog is there or not. So I define the Haveli. So if I define the Hmm. character women above, so in my later prompts where I define the action, I use the Begum, I'll use the word women because I've Hmm. defined the women above. Right. For environment like Haveli, I'm defining the Haveli. So in my action prompts, I'll use Haveli only because I've defined the Haveli prompt above. So do you use a step-by-step process like the setting and then you have a Yes, description, a yes, yes, I do character, and that. then I a do that. description? I, So I, that is I, that is the I, most efficient way we could yes, also find that you just give yes. all the things separately. Audio, there I is a make separate. separate paragraphs. I make Yes. separate paragraphs, and I do not use Word because that keeps formatting it in some different way. I use the Notepad, plain simple text. Right. That is according to me, that is the best way to write prompts. I mean, you know So it better for because you have been doing for the so many years. I'm just 50 days back. I started working on this. we two came 50 days back, so we both have the same experience, I guess. No, I've With seen your audio work. I mean, prompts. the first trailer you've cut, it's mind blowing. I saw it on the Thank you so much. YouTube, and it's fantastic. It's fantastic. The sound design, everything, you have worked tremendous job in that. Thank you so So much. for Sir, just to just a continuation of this because I think Adi Boy and there was one more person who had asked for flow and how does flow work. Can you briefly just talk about flow also in the I have same worked on topic? you mean the VO3 flow, Google Flow, or the flow Google of Flow, my Google Flow, Google Google Flow? Flow. Okay, okay. So Google Flow I've worked, but I have not used that extend that part. I have not. I think using the It Google came two, Flow. 3 days back, so yeah, I mean, Yeah, I think it's the still Google early. Flow, using the Google Flow keeps your character constant. That Hmm. that that makes a difference because in Gemini you get only 3 prompts a day. And it's like I have Right. 5, 6 accounts in Gemini. If I input the same prompt in my different It accounts, it will generate a changes. different character from the same prompt. So Flow Right. basically, if you use Flow, definitely I'm not using the other. I'm just using it like Gemini. I input Hmm. my prompt, and the next prompt also I define the environment and the character, but I get the same, almost visibly same character. मतलब आप किसी को दिखाएंगे वो उसको same ही लगेगा, उसको सेम लगेगा, करेक्ट। same लगेगा. वो Yes. तो चीटिंग, वो तो चीटिंग। मैंने एक और चीज हाँ. वंस आई आंसर्ड कि मैंने ग्रुप पे आंसर किया था, एआई रेसिस्ट। तो आप जितना Racist, yes, रेसिस्ट it is प्रॉम्प्ट racist. Yes, डालोगे, yes, जितना totally रेसिस्ट totally प्रॉम्प्ट agree. डालोगे I उतना remember. ज्यादा कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपको Yes, मिलना शुरू होगा। yes, सो yes. इफ यू राइट दैट देयर इज अ मलयाली गाय इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप विद दिस पर्टिकुलर फीचर, देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट दैट कंसिस्टेंसी, दैट इज फंक्शनल कंसिस्टेंसी। देयर माइट बी Right, लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिपेंसी बट इट विल बी फंक्शनल ऑल टुगेदर। right. सर जस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी भागूंगा। जस्ट Sure, sure, sure. अगर एक एक Short and स्टेप fine. उससे और बात करें, we have talked about setting, but Spectral Shroud had a specific question of grading in AI, and Yeah, I yeah, find yeah. it fascinating because grading in traditional filmmaking was the last thing you do, and in Yes, my yes, process, grading is the first thing that I do. So, yes, and you are a cinematographer, so you know this much better than yes, I do. So, yes, yes, if you yes, can yes. talk about grading in So AI altogether. grading. The prompt for grading, first comes the character, then comes the location, then comes my grade. And I specifically use my camera lenses. I'm using 135 millimeter. Using 50 Correct. millimeter. Use this 50 lens or 85 millimeter lens for this. So for grading, I define the shadows. I define the midtones. What kind of color I want in midtones. What kind of color I want in highlights. It should not be overexposed. I give you one example. See, Hmm. for this Daksh itself, it's desaturated cinematic war grade color palette with selective color emphasis. Base palette is muted khakis, pale browns, weathered grays, ash tones, dusty creams, skin tones in natural but subdued, no glamour or glow. Because it's important to write. Otherwise, when we mention women, it will make her skin like very smooth, very Absolutely. clean. We don't want that kind of thing. So We don't want it's that. good to mention no glamour, no glow. And for shadows, crushed blacks with slight green tint because this is the best for war kind of things. Texture is dark areas to emphasize decay and mood. Use filmy contrast to separate shadows and mids. And for midtones again, slight cool shift with hints of blue, green, and ambient daylight. Highlights controlled, avoid bright exposure. Use natural sunlight leaks in smoke diffusion to create subtle flares and edge glows. And very important in my Nux film, what I've used is I've used the color pop technique. My sindoor color and the color of her hands where sindoor is there, or the color of her dupatta. That is, very well separated from the backdrop because backdrop is That is your accent color also that breaks the palette to give yes, that yes, yes, yes. emphasis Because on the because Nux symbol. Nux means when you leave some imprint,
So that woman Right. on the wall that leaves the imprint, that makes a lot of difference, because she has been there. She is all destroyed, but she is leaving her handprint there. That naqsh she Hmm. is leaving there. So that color Right. was very important because that defines the story. So selective, especially I have written selective color pop. Only one color remains deeply saturated: the women's red dupatta and sindoor. It appears vivid, almost hyper-real against the surrounding muted world. All other Hmm. reds like bricks, flags, and your fabrics are pulled back. They're not vivid. Emphasize debris, cracked walls, burnt surfaces, poke in shafts of light, highlight particle motion. You can see the light rays, Absolutely. dust The in God the. particles, the God Yes, light yes, that is yes. coming, the dust particles floating. Yeah, That is what yeah, makes it so good. So, yeah. like, Because yeah, I, as a cinematographer, I always like to work with the backlight and coming light from creating the source of light. That makes the mood and it defines a lot of things. अगर आप कहीं लैग भी कर रहे हैं तो एक सिंपल सा लाइट की स्ट्रीक है ना, that will define your mood whatever that you're will doing make it anyway. elevate it anyways. Yeah. And for I specifically write the LUT like for this I have written bleach bypass base with warm highlights. Or Hmm. if I want a Kodak 2383 look, I will define I want the look with Kodak 2383. But sometimes you know what it did? It created a strip around all the four sides with Kodak 2383 written on this. Uh, That is something that it does yeah, sometimes. yeah. So nothing to write on this. It's just the kind of look I want in my. So this is my basically color grading process. I define So everything in detail. just to simplify it for people who are listening, basically, like when you want to learn AI filmmaking, it's not about just learning AI filmmaking. Even if you select separate topics, like what does lens do to a film, so you will understand about lensing. Now these have become turned into words. So you know when to use a 200 and when to use a 50 mm. Now again, this comes when you want superior control on what you're doing. This is very specific to AI filmmaking, I believe. Lensing is one topic, shot sizes is another topic, even the color patterns and color schemes that sir was talking about, where you have a pop of color. These have terminologies attached to it, and those are the terms on which AIs are trained. So instead of looking for one video that teaches you AI, trust me, any tutorial like that is not going to help you alone. Like you will have to get into the filmmaking process also and learn different things separately, like what will a Kodak camera generate a result, ARRI will generate a different result, and IMAX will generate a different result. So these are the smaller terms in which you can start finding control. Sir, there were a couple of questions from you in the live chat as well. So one question is something जिसका आपको answer brief में देना पड़ेगा, but it is by Rohit Sharma, who actually both the questions are from Rohit Sharma 99. He has asked that how can I make cinematic videos like Bharat sir, because his latest video is very nice, like a movie trailer. And he has also asked that when you are maintaining your character consistency, should he use the age and the other markers of the character every time? Which I think you've answered, but you Yeah, can yeah. just do that again. Also, he has asked what setting I should add in VO3 to generate that consistency. So if you can, this is Rohit Sharma. Consistency. I think I've already explained. We You have talked about it. answered, yes. And Yes. as far as creating the videos like what I did, I mean, okay, I created people. Many people are doing much better work than me, but you start thinking like a filmmaker. I watch a lot of movies. I mean, there was a series on Amazon, Cinema Marte Dam Tak. So I follow it Hmm. like uh, I breathe cinema. Cinema is all around me. So see good cinema and try to make stories out of that. What kind of lens, what kind of angle, why this close up is there. So like if you're creating something, don't depend on only 8 second shot. You Hmm. make calls for intercuts. Like if you are as you said, you need to know the terminology. It's a long shot. You want to cut to a mid close. You want to cut to a close. What is a close? What is the difference between mid close and close? What is extreme close? Where to use extreme close? So if you use totally rely on the GPT or your Gemini, they will give you prompts one after another with the same magnification, with same mid close up or a close up. But that does not bridges in, that does not joins in edit. That just once you edit. So you need to have the sense of cinema. Watch as much films as you try to interpret the work. Why this close up is there? That's the only way to learn. फेयर इनफ देयर इज अनदर तुम्हारा बोला, उसने मुझे पूछा है कि कैसे आप 60 सेकंड के वीडियो बना सकते हो VO3 पे जब वो 8 सेकंड डालता है। तो मैं बस क्विकली आंसर कर दूंगा, बिकॉज आपने आंसर ऑलरेडी कर दिया था। सो बेसिकली बोला एट एंड ऑफ द डे आपको एडिट करनी पड़ेगी। सो आप एआई को एक कैमरा की तरह समझो। तो पहले जो आप 6 शॉट शूट करते थे और उसको एडिट करते थे तो वो 60 सेकंड्स का बनता था। अभी भी फंडामेंटल सेम है। इट्स जस्ट दैट आप कैमरा नहीं यूज कर रहे हो, आप
AI से वो शॉर्ट्स जनरेट कर रहे हो, बट जो ट्रेडिशनल एडिटिंग प्रोसेस थी वो अभी भी समवेयर मैटर करती है। तो आप अगर प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर या इवन समथिंग कैपकट जैसा सॉफ्टवेयर जो इजीली मोबाइल पे अवेलेबल है, आप अगर वो भी यूज कर रहे हो तो आपको 8-8 सेकंड के डिफरेंट वर्जन सोचना, फिर आप उसको जोड़ना है, तो जिससे आपको 60 सेकंड के वीडियोस मिलेंगे। वो एक बार में 60 सेकंड आपको नहीं जनरेट करके देगा। सो आई होप आपको ये मतलब ये पार्ट आपको समझ आया होगा। कुछ भी क्लैरिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में उसको डाल सकते हो। सर इवेंचुअली एक और चीज समथिंग जो आपने लिखी थी, एंड देयर आर सम रिक्वेस्ट कि हम हिंदी में कन्वर्सेशन करें इफ इट इज एक्सेसिबल टू ज्यादा लोग। आप एक बार अगर कंक्लूसिव नोट पे इफ यू कैन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फिल्म मेकिंग, हैविंग अ विजन एंड प्री विजन, बिकॉज ये मैं सबको बोलता हूँ, जो आपने भी मुझे बोला कि आप पहले खुद से पूरा चीज सोच लो, फिर आप जीपीटी के जरिए के पास जाओ। आपको क्या चाहिए आप श्योर हो जाओ, फिर आप जाओ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्री विजुअलाइजेशन एंड फिल्म मेकिंग, अगर आप इसको समराइज करके हिंदी अगर हिंदी में क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज, आप जिससे भी कंफर्टेबल जी हो। ठीक ठीक है। ओके, तो मेरा यही है कि जो सिनेमा इज बेसिकली यू ऑलवेज डिवाइड इनटू, आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हो। प्री प्रोडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आप स्टोरी डेवलप करते हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, आपके डायलॉग्स आते हैं, वॉइस ओवर आता है, हर चीज आती है। तो यहाँ पे जो आप एआई फिल्म्स बना रहे हो, आई मीन यू आर डूइंग इट एवरीथिंग। सो विजुअलाइज एवरीथिंग। सबसे पहले तो एक आइडिया आ रहा कि यस मुझे इस आइडिया पे काम करना है। आइडिया आ गया, जैसे ये नक्श का था एग्जांपल, मैं बार बार दे रहा हूँ कि नक्श का था, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मेरे को था कि मैं कुछ करूं, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स मैं नहीं वहां पे कर पाया। तो नाउ आई हैव ए टूल, मेरे को दिमाग में था कि मेरे को फॉर पीपल ऑफ पुंछ उनकी इतनी हाईलाइट नहीं हुआ था, मुझे हाईलाइट करना है। सो आपने डिस्ट्रक्शन का थीम निकाला, मैंने कहा सो दिस इज द बेस्ट वे टू नरेट माई स्टोरी व्हाट आई फील। तो एक वुमेन का कैरेक्टर मैंने बनाया मन में, फिर मैंने शॉर्ट सोचा कि हवेली ऐसी होनी चाहिए, उसको आप ऐसी लाइट आनी चाहिए, अगर वो डिस्ट्रक्शन हुई है तो कैसा दिखेगा। उसके आसपास मैंने अपनी उन शॉर्ट्स के आसपास मैंने अपनी स्टोरी बुननी शुरू की। स्टोरी मतलब कि शॉर्ट्स थे, कहाँ से एंटर करेगी, पहले लॉन्ग शॉट है, फिर वो अंदर आई। उसका साउंड डिजाइन मैंने बाद में क्रिएट किया है, वो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन वीओ की, दैट इज बीटा स्टेज, वो मेरे को नहीं समझ में आता, बिकॉज जो ऑडियो डायलॉग्स आते भी हैं उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। आई एम यूजिंग 11 लैब्स, बहुत ही फ्लैट वो होते हैं। हाँ बहुत ही फ्लैट होते हैं और बड़ी मेटालिक सी वॉइस आती है, वो मुझे नहीं ठीक लगती। सो सबसे पहले स्टोरी अपने वहां क्रिएट करो, आंखें बंद करके बैठो कि आप पूरी पिक्चर देख रहे हो। आपको एक बार पूरी पिक्चर देख गई, उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स। आपकी स्क्रिप्ट, आप पहले स्क्रिप्ट बन गई, आपके डायलॉग्स आ गए पूरे, उसके क्या है, आपकी 2 मिनट की फिल्म है, 1.5 मिनट की फिल्म है। उसके बाद अपनी शॉर्ट डिवीजन करो, पहले ये शॉट आएगा, आंखें बंद करके बैठो, उसके बाद इसका क्लोजअप लगेगा, उसके बाद ये लगेगा। फिर वो शॉर्ट्स लिख लिए, फिर उन शॉर्ट्स के आगे प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू करो रफ में। और जैसे हम जब कोई फिल्म बनाते हैं हम लुक टेस्ट करते हैं, आपने भी क्या होगा, लुक टेस्ट करते हैं कि इस फिल्म की लुक कैसे आएगी। तो मैं वो उस प्रॉम्प्ट को पहले विस्क के अंदर जाके मैं ट्राई करता हूँ कि वो मेरी कैसी लुक आ रही है। तो वहां से मुझे आइडिया हो जाता है मेरे प्रॉम्प्ट में मिस्टेक्स क्या है। कई बार मुझे करेक्टर यहाँ दिखाना है, वो दूसरी साइड पे देख रहा है, तो आई मॉडिफाई टिल द टाइम आई गेट माई लुक कि वहां पे मेरा ठीक है। उसके बाद मैं क्रेडिट वेस्ट करता हूँ, 20 क्रेडिट जो मेरे को वेस्ट कर रहे हैं, मैं तब उसके बाद वेस्ट करता हूँ। इनिशियली आई डोंट वेस्ट, डायरेक्टली गो टू स्टार्ट टाइपिंग, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आई डू इट ऑन विस्क फर्स्ट, I generate the still image. If I am satisfied, then I work on it. And sir, importance, just a conclusive note of what you think, how will, like, for example, हम लोग जब pipeline create कर रहे थे, तो we had noted down all the film departments and started to figure out कि कहाँ पर कौन सा department AI assisted होगा, कौन सा AI replaced होगा, कौन सा will be free of AI altogether. तो आप future of filmmaking and AI को कैसे देखते हैं? No department is untouched, sir. Everything, AI will come into every department. For the past 50 days, I am thinking, I'm not a cinematographer. I have become a AI cinematographer. One of my director is there. He said, यार तू तो अब कैमरा छोड़ ही दिया, तू तो इसके ऊपर आ गया। मैंने कहा यार, I had a long argument 2 days back because we were planning a feature film, a regional language. मैं कहा नहीं यार, ये you use my skills in the betterment of the product. So हाँ, डिपार्टमेंट को टच करने वाला है AI. You cannot think कि नहीं ये नहीं होगा, इंडस्ट्री में नहीं होगा। AI is there and this is the future. तो स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट यूटिलाइजिंग AI, अभी से स्टार्ट यूज करना स्टार्ट करो एंड डोंट थिंक इट एज ए फो। ये आपका फ्रेंड है, यूज इट इन ए पॉजिटिव क्रिएटिव वे एंड यू कैन डू, एवरीबडी कैन डू वंडर्स। इफ आई कैन जनरेट द वीडियो, एवरीबडी कैन जनरेट द वीडियो बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ AI। इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए फिल्म मेकर और जितनी फिल्म देख सकते हो देखो, विजुअलाइजेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, यू कैन डू एनीथिंग। Thank you so much for taking out time, Thank sir. you so I much wish for I could have longer discussion with you, and we will be planning that. Today is a very experimental phase for us. This entire discussion will be recorded. There will be minutes from the discussion जो कि server group में आ जाएगा. Any question like another question जैसे आपने भी रोहित पूछा है about how do you voice generate, कुछ हम आगे के discussion में भी cover करेंगे. Also कुछ questions जो हम नहीं answer कर पा रहे, we'll make sure कि वो resource हमारे जो पेज के जो सर्वर ग्रुप है उसमें वो रिसोर्सेज हम इस डिस्कशन के बाद डालेंगे। सो कुछ आपसे मिस नहीं हुआ है, दिस वीडियो विल बी अवेलेबल एंड थैंक यू सो मच
Bharat sir, for taking out time. Thank you so much Uh, having me. Thank you so the much. 30 minutes feels too low to talk to you, but I'll make sure that we have a longer It was a discussion pleasure next talking week. to you. Thank you so Thank you much. so much, sir. Thank you so much. Thank you. Uh, So, guys, just to summarize this discussion, there were two, three topics we were discussing. In this particular one, we slightly discussed about scripts, where try to write your own story before, like have as much detail as possible before going to AI, so that you have more control on your story. Consistency wise, absolute consistency still is a problem, but work in a very caricaturish style. Give them special features altogether, because at the end of the day, cinema and any content is about lying. Nothing in a cinema world is true. It's a plain blatant lie. So be a good liar altogether. Why I'm saying this is that if you can create similar things, that's more than enough altogether. And also, what we discussed was the importance of setting and color grading and pre-visualization in AI filmmaking altogether, because these processes in film generally happen at a later stage. In pre-prod also you do that, but in AI world, your images are the first thing you generate. So a lot of decisions are taken on the top. Next we will have Aditya joining us in 5 minutes. Aditya is another filmmaker and AI filmmaker who has done some very different kind of stuff. Like from whatever we have received, Aditya's work has stood out because he has a different sense of visuals altogether, and he can create a visual identity for his work. Like his work would look visually different. So whenever I see something, I know it's Aditya, and that's a signature he could create. And that is what we will be discussing. That when you enter the production process, what happens? How can you use multiple style? Now, one thing I tend to say people that AI is not about doing the old things again in a new medium. सो बेसिकली फिल्म में जो हम कर रहे थे, जो रियलिज्म हम ढूंढ रहे थे, वो रियलिज्म एआई भी वही रियलिज्म पे काम करे, ये जरूरी नहीं. सो आई थिंक आई विल कॉल अपॉन आदित्य, because then we can discuss about how does he create his visual identity. I've invited him, so he should be here. And hi Aditya, हाय. hello. हेलो हेलो, कैसे हो आप? Hi, lovely meeting you finally, because I have been literally a fan of your work for one very specific reason, which I was talking about, the amount of identity you create with your work, and like it stands out in the feed when every AI video is passing. I would know that this is Aditya, and you have created that signature. Hence, the topic of visual identity in a world of AI where things seem to start similar, you could break that pattern. If you can just introduce yourself to all the listeners, and then we can take ahead with few questions and your process. अह, मैं 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. मैंने स्टिल फोटोग्राफी से स्टार्ट किया था बुलेट राजा में, और फिर उसके बाद सिनेमाटोग्राफी में गया. फिर मैं ग्रेजुएट था वीएफएक्स में, मैक्स से मैंने डिग्री ली थी, इंजीनियरिंग छोड़ के बीच में ड्रॉप आउट करके. तो वो करने के बाद मैं सिनेमाटोग्राफी में घुसा. फिर जब जो मैं शूट करता था वही मैं एडिट करता था. तब मेरे को समझ में आया कि मेरा विजन बच सकता है अगर, तो वो ऐसे बच सकता है जो भी आप सोच रहे हो. फिर उसके बाद मैं कोर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ. फिर मेरे को एक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और फिरोज बास खान के साथ में एक शॉर्ट फिल्म करने को मिली. तो वो शॉर्ट फिल्म का आइडिया था वेरी एनडीटीवी लाइक चीज़ का. बट मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मेरे लिए वो ऐसा था कि इसमें डायलॉग क्यों चाहिए, मतलब आप समझा सकते हो इसको शॉर्ट से भी. Hmm. और जो उस टाइम मेरा डायरेक्टर था उसने मेरे को सोचा कि ये ज़्यादा सही बात बोल रहा है. तो मैंने बोला कि ठीक है चलो ऐसे ही करते हैं. हमने बना दी फिल्म, और जब हमने फिल्म सबमिट करी तो उनने कहा कि ये तो आपको रीशूट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो वही नहीं है जो हमने आपसे बोला था. और हम बोल रहे हैं कि Hmm. सर ये बात तो वही कह रहा है और सब कुछ कह रहा है, आप एक बार इसको बाहर तो निकाल के देखो. तो उस पर करीब 6 महीना डिस्कशन चला, Hmm. और फाइनली वो फिल्म फरहान अख्तर ने देखी. और फिर Hmm. उसके बाद मर्द के चैनल पे उसने रिलीज़ किया उसको एज इट इज़, नो चेंजेस. और फिर उसके बाद हमने उसको इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेजा, 3 जगह जीत गई. तो तब लगा कि विजन कुछ तो मतलब है. अब फिर एआई में मैं, कैसे ट्रांसेंड करना शुरू किया बेसिकली? यार एआई हुआ क्या, जब आप ऐसे बड़े होते जाते हो धीरे धीरे, और उसके बाद आपको लगता है कि अब पिच करना चालू करना चाहिए. Hmm. तो जब आप फिर वो आराम नगर लोखंड वाला चक्कर मारना चालू करते हो, और फिर Hmm. वहाँ पे 6-7 महीने खत्म करने के बाद आपको पता चलता है कि ये नहीं होने वाला. तो वो चीज़ जब हिट करती है तब आपको लगता है कि यार मैं खाली स्टोरी बोलना चाहता हूँ. Hmm. ठीक है, मैं मेरे को मैं नहीं वहां पे मतलब. आपसे रिलेट करता हूँ, क्योंकि आइडिया एक स्टोरी टेलिंग का है.
स्टोरी हाँ टेलिंग में आप मूवी डाल दो, एड फिल्म डाल दो, कुछ भी डालो, इफ यू कैन टेल अ गुड स्टोरी, एंड दिस फॉर एग्जैक्टली। एवरीवन जो मार्केटिंग वगैरह भी सोच रहे हैं, आप कहानी बताना सीख जाओ। हाँ उससे ज्यादा कुछ नहीं है, फिर आप कोई भी मीडियम में हो, आप कुछ भी करते हो, वो कुछ भी, आप कहानी किताब आपको लिख दो, हर जगह हेल्प गाना करेगी। लिख दो, शायरी लिख दो। आप जो अगर बोल रहे हो वो जरूरी है तो बोलना जरूरी है। और क्योंकि पूरा बैकग्राउंड विजुअल्स और वो वाली चीजों का था, फिल्में भी मैंने बहुत सारी देखी हैं अपने भोपाल के पुराने दोस्तों के साथ में भी, यहाँ पर आने के बाद भी वो चीज कंटिन्यू करी है। तो वो चीज में एआई वैसा हो गया कि मेरे को सेट के बारे में नहीं सोचना, मेरे को ये नहीं सोचना कि मैं अनरियल के लिए एक कंप्यूटर खरीदूं ताकि जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कंप्यूटर झेल पाए। हम्म। क्योंकि मैंने भी, जब मैं डिग्री कर रहा था तब मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स पे काम किया था। फिर करेक्ट। अनरियल पे भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है बनाना, बट मेरे लिए मॉडलिंग थोड़ी सी बोरिंग वाला जोन हो जाता है। मेरे को कैमरा दे तो आप दो, बेसिकली सेट बना के दे दो। 3D वर्ल्ड के अराउंड आप घूम के एक बार आ चुके हो ऑल टुगेदर, मॉडलिंग, हाँ टेक्सचरिंग। तो हाँ अभी वो कैसे, like what are the tools you are using now, and how is your 3D का knowledge and photography का knowledge assisting you, because it's important for everyone to understand कि बस ये एआई नहीं है, इसके साथ अगर आप दो तीन चीजों का नॉलेज रखते हो तो आप एआई को कंट्रोल बेटर कर सकते हो। अभी आप करेक्ट। कौन से टूल्स पे काम कर रहे हो, एंड मैं व्हाट इज योर अभी प्रोसेस? फ्लो लिया है मैंने थोड़े दिन पहले, और उसके पहले मैं सोरा यूज कर रहा था क्योंकि वो चैट जीपीटी के साथ फ्री आ रहा था तो मैंने बोला कि ये करते हैं, बट मैं मेजरली। बहुत, सॉरी कंटिन्यू। हाँ मैं बोल रहा तो था बहुत सारे लोग मुझसे फ्री सॉफ्टवेयर पूछते हैं, तो अगर आपके हाँ पास एक लिस्ट है तो वो भी आप बता दो सबको को कि ये फ्री है, सो जो भी स्टार्ट आउट कर रहा है। सॉरी टू यार, इंटरप्ट, आप अगर वो कंटिन्यू। करना है ना आपको, क्या नाम है, वो बार बार आईडी बना के चलते हैं ना जो, हाँ। अगर वो चीज करनी है ना तो सैंड डॉट एआई बहुत अच्छी चीज है। स्टैंड और डॉट ए आई, ये मुझे भी नहीं पता है क्या करती है स्टैंड डॉट ए आई। उसका ना, उसका मेन यूआई बहुत अच्छा लगा था। तो बेसिक एक जैसे अपना नोट ट्री होता है ना, माया का ले लो या हम्म। डविंची का ले लो, नोट ट्री होता है फ्यूजन के करेक्ट। अंदर वाला पेज, करेक्ट। बहुत करेक्ट। सारा 3D स्पेस है और नोड्स है। तो करेक्ट। नोड्स अपने इमेजेस हैं, हम्म। और इमेज के बगल में एक प्लस साइन होता है, वहां पर आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, ड्यूरेशन लिखते हो, और वो उस इमेज को की फ्रेम बना के उसके आगे बनाता है। तो जब ओके। आप तीन चार सीन्स, जैसे मान लो कि मैं तीन लोगों के बीच में एक सीन कट करना चाहता हूँ, हम्म। तो मेरे को खाली एसेट्स बनाने हैं उसके, जो कोई सा भी 180 यूज करूंगा ना मैं, या तो यहाँ ये वाला हम्म। 180 यूज करूंगा या ये वाला 180 यूज करूंगा, उस 180 के मेरे को खाली तीन शॉट्स चाहिए, और वो तीनों एक साथ चलते रहेंगे। मेरे को, मैं देख सकता हूँ कि वो कैसे चल रहे हैं आपस में। ओके। तो बट ये इज इट लाइक कंफी यूआई, मतलब ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है स्टैंड डॉट ए आई? नहीं नहीं, ऑफलाइन तो नहीं नहीं, है। ये मेरे को मैं बस इसकी क्विकली जरूरत वहां क्लैरिफाई पे कर पड़ी। देता हूँ ऑडियंस के लिए, सॉरी। बेसिकली नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने अगर प्रीमियर या कैपकट यूज किया है तो ये नॉन नोड बेस्ड होता है, ये लीनियर होता है। हाँ नोड बेस्ड ऐसा होता है जहां पर आप एक पर्टिकुलर इमेज को लेकर के बहुत सारे नोड्स बना सकते हो। नोड्स बेसिकली आपका एक तरह से प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर मैं एक इमेज ले रहा हूँ और उसको मैंने एक कलर करेक्शन के लिए मैंने एक नोड बना लिया जो उसको कलर करेक्ट के लिए प्रोसेस करेगा, फिर वो कलर करेक्ट होकर के वो इमेज वीडियो बनने जाएगा, तो मैं उसमें एक तरह से एक प्रोसेस बना सकता हूँ जिसमें पहले कलर ग्रेडिंग होगी, फिर उसमें पर्टिकुलर कुछ चेंज होगा अगर होना है तो, फॉर सिंप्लिसिटी, करेक्ट। और फिर फाइनल जनरेशन होगा। तो आप उस पर बेसिकली तीन चार लेवल पे कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो और उसको बार बार यूज करके आप ज्यादा जल्दी बहुत सारे कामों को कर सकते हो। तो वैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें नोड्स होते हैं, अगर वो समझ मेनली, आए तो, वरना मैं बाद में बात हाँ मेनली आप एडिट देखते जा सकते हो। अगर आपका करूँ। तीन करेक्ट। या चार कैरेक्टर्स के बीच में चल रहा है ना कुछ सीन, तो हम्म। आप एडिट देखते जा सकते हो। पहले अपने क्लोजअप्स कंप्लीट कर लो, फिर एक वाइट बना लेना उसका, हम्म। उस हिसाब से वैसा, मतलब थोड़ा करेक्ट। उल्टा प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। तो मैं इस पे तो बस एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, हमारे ग्रुप पे स्मोक स्नेक आईडी से समवन हैड पुट अ क्वेश्चन कि आप हाँ, जब एक्शन कोरियोग्राफी या थोड़ा सा मोशन बेस्ड कोरियोग्राफी में एंटर करते हो, तो विल समथिंग लाइक दिस हेल्प, एंड हाउ टू डू दैट वाज द क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आंसर। मोशन कोरियोग्राफी एज इन, So basically action choreography, so something that is fast motion altogether, wo how to do it, will this help in any way? ओ मोशन कोरियोग्राफी तो मेरे को लगता है कि अगर, मतलब वो वैसी वाली चीज है। अभी मैं एक शॉट बना रहा था जिसमें एक एस्ट्रोनॉट का पैर जमीन पे टच होता है, Hmm. बट मैंने इतना ही लिखा था उसको बनाने के लिए, उसने अपने आप Hmm. एक और पैर बना दिया, वो चढ़ने लग गया, नीचे उतरने लग गया, और बहुत सारी चीजें होना चालू हो गई उसमें। बट वो, मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा अभी तक कोई एक वो आ गया, तोड़ आ गया उसका कोई। Hmm. बट आप ये कर सकते हो कि आप रेफ इमेज बना लो या आप एक की फ्रेम बना लो, और फिर उसको वहां से जितना सेकंड जो सस्टेन कर पा रहा है उतने सेकंड में आप फिर अपना नोट बना लो कि ये जो भी एआई है, ये एटलीस्ट 3 सेकंड मेरी बात सुन रहा है 5 सेकंड के Hmm. जनरेशन Hmm. में। और फिर आप उसको रीमिक्स में लेके जाओ, उसको कट करके उसको इस फ्रेम से आगे बोलने के लिए बोलो, या फ्लो के Hmm. अंदर भी वो वाली चीज होती है, सीन 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 See समथिंग dance. उसका,
अच्छा नहीं नहीं फ्लो, हाँ उसमें सीन क्रिएटर होता है, फ्लो में सीन क्रिएटर, जिसमें आप एक सीन सीन से दूसरे क्रिएटर, से। हाँ सीन क्रिएटर के अंदर जाके करेक्ट। भी आप उतना कट करके फिर उसको आगे बना सकते हो। बट फास्ट मोशन मतलब एक मैंने चीज जो आपने बोला, आई थिंक रेफरेंस इमेज वाला, वो मैं यूज करता हूँ कि ऑलरेडी अगर मेरे को एक्शन कोरियोग्राफ करना है तो समवन इज पंचिंग, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा रेफरेंस ही विथ दैट एक्शन है। सो उससे जब मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ तो वो एक्शन कोरियोग्राफी इजियर हो जाती है, आई मीन मैंने अभी जो भी जस्ट आपके टू। यहाँ सबमिट किया है हाँ, उसमें सिर्फ एक ही बार रेफरेंस इमेज यूज करी थी, क्योंकि उसको रेस्ट सब। एवरीथिंग इज डायरेक्ट वीडियो। हाँ पूरा ही मेरा, मैं अपने आप को मतलब वही लेके चल रहा था। फर्स्ट वाली वो फिल्म याद है आपको, वो पीओवी वाली? करेक्ट करेक्ट, वो तो बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट लाइक वन ऑफ उस माय फेवरेट्स स्टिल। उसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वो भी जनरेटेड है उसमें भी। मेरे को पता है आफ्टर इफेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, मैं दाविंची पे एडिट हम्म। करता हूँ और बाकी सब पता है। बट चीज वाज कि इसको इसको पकड़ के लेके जाना है, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है हम्म करने की। अभी मतलब वो वाली चीज है कि पहले आप कंप्यूटर यूज करते थे जैसे कंप्यूटर चाहता है यूज होना, हम्म और अभी वो कंप्यूटर्स वैसे हो गए जैसे आप रोजमर्रा की चीजें करते हो। हम्म। तो आप अगर डिफाइन अच्छे से कर सकते हो कुछ, तो वो बना सकता है। करेक्ट। तो मैंने वैसे अप्रोच किया, इसलिए मैं आप रेफरेंस इमेज नहीं बनाता। प्रॉम्प्टिंग के बारे में बता पाओगे, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब मैं जनरली मैं रेफरेंस कोशिश करता हूँ कि रहे। सो आपका प्रॉम्प्टिंग का कोई स्ट्रक्चर है जो बाकी लोगों को हेल्प करेगा? मेरा सबसे पहला चीज यार, जो मैं प्रॉम्प्टिंग पे तो मैं मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देता, हम्म बट मैं चैट को ट्रेन करने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। और उसको प्रोजेक्ट बना के पहले एक कोई भी चीज पे, जैसे मान लो कि मेरे को एक 9 मिनट डिलीवरी करके मैंने एक वो बनाई थी, हम्म छोटी सी, इधर से उधर कोई कोरियर लेके जा रहा है, मेरे को वो न्यूयॉर्क के जो साइकिल कोरियर होते हैं ना, वो वाली एनर्जी हम्म। यूज करनी थी। तो मैंने चैट को बोला था कि डैनी बॉयल की फिल्म्स को थोड़ा पढ़ो जाके, डीप सर्च करो, और उसको कैसे जनरेट करेंगे वो बताओ। फिर मैं आपके पास आऊंगा वापस और फिर अपन स्क्रिप्ट बनाएंगे। एंड उसके बाद में वो जो उसके ट्रेड्स होते हैं ना, कि हम्म कैसे बिहेव करे चैट जीपीटी, तो वहां पर जाके वो ट्रेड्स और वो सारी चीजें एकदम पक्का करके, फिर हम्म उसके बाद मैं चैट जीपीटी को तब तक क्वेश्चन नहीं करता जब तक जो मैं चाहता हूँ उसमें कुछ वैसी वाली चीज है। जैसे मेरे को एक चीज पे लिखना है अकम्पलिश्ड, हम्म। बट वो अकम्पलिश की स्पेलिंग गलत है। करेक्ट। तो मैं वो दोनों को साथ में लेके चल रहा होता हूँ। मैंने ट्राई किया है वो कोर मूड एक्शन वैक्शन वाली वो वाली चीज, हम्म। बट वो सोरा के बाद मेरे को यूज नहीं करना पड़ा। VO2 यूज करता हूँ मैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, टेम करेक्ट। क्रेडिट से यूज होते हैं उसमें। हम्म तो उसमें मेरे को वो कोर वोर वाला सीन नहीं बताना पड़ा मुझे। बट मेरे को हम्म। सोरा में मैंने एक चीज रियलाइज करी थी, जब मैं वो बैंग वाली जो चीजें बना रहा था ना, हाँ, कि द उसमें एक्सप्लोजन्स, हाँ। एक्सप्लोजन में टीवी उसने एक बार में ऐसे भड़ाक कर दिया था। हाँ। ठीक है, बोला और उसने एकदम वही बनाया जो चाहिए। उसके बाद मैंने उसको बोला चल एक केटल के साथ करते हैं, सेम चीज ही करनी है। हम्म उससे जो प्रॉम्प्ट लिख के दिया उसमें वो केटल ऐसे पेपर के जैसे फट रहा था। हम्म तो अब मेरा जो वीएफएक्स का बैकग्राउंड है, मैं वहां से सोचने की मैंने कोशिश करी कि ये मे बी इसको पेपर का समझ रहा हो। तो मैंने उसको सिरेमिक डालने के लिए बोला वर्ड में, मटेरियल्स, जो मटेरियल्स मटेरियल बेसिकली। डालने के लिए बोले। फिर मैंने एक चीज ट्राई करी कि अच्छा मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक बॉम्ब प्लेस्ड है और वो फट गया है। हाँ, ठीक है, so वो then you basically use materials and you use the फिजिक्स physical ऑफ, physics of the explosion altogether. हाँ तब भी नहीं हुआ वो। Oh. ठीक है, हाँ तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बोला कि चैट को बोला कि ये हम्म इसका ट्रेनिंग क्या है, सोरा का है क्या, मतलब कहाँ से लेता है हम्म डेटा, क्या करता है। तो हम्म। उससे बोला वही जो वीडियोस इधर उधर चल रहे हैं, जो फेमस वीडियोस हैं उनमें से ही ट्रेंड है ये। और फिजिक्स फिजिक्स इसका थोड़ा सा अच्छा है, बाकी मिनीमैक्स का थोड़ा फिजिक्स और ज्यादा अच्छा है। टाइप्स उसने मेरे को Minimax is रिसर्च also Halio. Halio, करी। people know Minimax as Halio. Yeah. हाँ, तो मैंने सोचा कि ओके, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि एक केटल है, सिरेमिक का केटल है, वो ऐसे फटा है जैसे म्यूजिक वीडियो में पुराने टीवीज फटते हैं। Okay. तो मैंने उसको एक इंस्पिरेशन दी So I जो took the पॉसिबली reference from, हाँ। पॉसिबली पहले हो चुका होगा। और फिर उसके बाद मैंने कैसे टेप रिकॉर्डर को फोड़ दिया सेम इंस्पिरेशन से, केटल को फोड़ दिया सेम इंस्पिरेशन से, और मैं ऐसे करते जा रहा था, बट मैं टाइपराइटर पे जाके अटक गया था। तो फिर मैंने वो डाला नहीं, ऑल्दो वो एड और वो टॉपिक जैसे मैंने सुना था, मेरे को वो सोसाइटी टी का एड याद आया था, जो मतलब हम्म ऐसे रखे रहते हैं वो, और वो भुश भुश फटना चालू होता है, तो फिर वो मजा आता है उसका। तो मैंने बोला ये बनाते हैं, हम्म। अपना होमाज देते हैं जरा। क्योंकि Correct. यही मौका मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है ना कि आपके थॉट्स अच्छे होंगे बट वो बैठे हुए हैं पेपर पे ही लिखे हुए हैं, करोगे क्या उनका? Correct. Correct. तो
वो चीज एआई कर दे रहा है आपके लिए कि चलो बना लो, डाल लो। एंड मतलब इवन छोटी छोटी स्टोरीज मेरे साथ भी वो होता है कि पहले एक छोटी स्टोरी लिखी थी, यू डोंट नो इसको, ना तुम शॉर्ट फिल्म बना सकते हो ना कुछ बना सकते हो, बट एज अ थॉट बहुत अच्छी है। वो नाउ एआई दिखता इज है। गिविंग यू एवरीथिंग कि भाई तुम वो वही मैं अपनी टीम के साथ भी रिसेंटली डिस्कस कर रहा था कि स्टोरीज ढूंढने बाहर मत जाओ, अपने मेमोरीज को देखो, एक वर्ड चुनो, आम, तुम्हारा जो चाइल्डहुड का मेमोरी आम के साथ जुड़ा हुआ होगा उस मेमोरी को उठाओ, एंड देन उसको उसको एलिमेंट्स को फैंटेसाइज करते जाओ, यू विल कम अप विद सो मेनी ओरिजिनल स्टोरीज। एंड दिस इज समथिंग जो इस कम्युनिटी के साथ भी मैं चाहता हूँ कि लेट अस कम अप विद ओरिजिनल स्टोरीज। नाउ वी हैव एवरीथिंग वी नीड। तो मतलब वो करेक्ट। थिंकिंग की वजह कुछ और उठाओ, तुम बस अपने मेमोरीज में चले जाओ, think about one object and you will have a memory associated to it, that is your story. It करेक्ट। is as simple as that. Use your gpt to construct it and हाँ your work becomes special because बहुत लोग हमारे कम्युनिटी में हैं जो बहुत एक्सपेंसिव टूल्स अभी यूज नहीं करना चाहते, एंड आई डिड भी नॉट नो नहीं दैट यू करना आर चाहता। यूजिंग ओनली सोरा। सो जीपीटी का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है वो सोरा के साथ आता है, तो अगर आप किसी एक चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वैसा कुछ चुन सकते हो जो आपको इमेज, वीडियो प्लस टेक्स्ट सब साथ में है, वो आपको हेल्प करेगा। सो दैट इज अनदर थिंग करेक्ट। दैट केम आउट ऑफ इट। एक और क्वेश्चन ग्रुप में था आदित्य, दैट वाज फ्रॉम सोनल बत्रा। शी वाज आस्किंग कि हम फ्लूइड्स में कैसे मोशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ बिकॉज यू कम फ्रॉम वीएफएक्स बैकग्राउंड, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज फ्लूइड्स वीएफएक्स में टफेस्ट सब्जेक्ट है, एंड आई थिंक कुछ हद तक एआई वो फ्लूइड्स के मोशन को मैं सॉल्व बताता कर रहा है, तो एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट। मैं बताता हूँ फ्लूइड्स को। अगर आप अगर वो भी मतलब वहां से होगी ना वीएफएक्स वाले बैकग्राउंड से, तो वो उसको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म अगर आप विस्कोसिटी, स्पेक्युलर डिटेल, हम्म ये दो चीजें, और ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली, हम्म अगर ये चीजें स्पेसिफाई कर रहे हो, हम्म लाइक अभी मैंने एक वो बनाया है, छोटा सा एड, अभी मैंने डाला नहीं है उसको, हम्म तो मैं मतलब ठीक है बता देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, हाँ क्या है ठीक कि है। 2-3 तो लोग देखते हैं वही देख लेंगे, अच्छी बात है। हम्म बट जैसे ना वो रखे हुए हैं, चने रखे हुए हैं छोटे थोड़े से, उसके हम्म ऊपर हनी गिर रहा है। ओके ठीक है, तो अब वो हनी का हल्का सा टेक्सचर के बारे में बता दो, और हम्म उसकी विस्कोसिटी और स्पेक्युलर डिटेल और ट्रांसपेरेंसी बस अगर आपने बता दी है, तो हम्म VO2 को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी हम्म ये बनाने में। बट और वो इंफॉर्मेशन अगेन इज समथिंग जो तो मतलब अलग से आप सीख करके आते हो, एनीथिंग दैट हाँ कैन मतलब हेल्प हाँ सबको को। वो हाँ वो अगर मतलब आसान तरीका क्या होगा उसको मूव करने का? आसान तरीका ये होगा, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि वो चीज ट्राई करना इंस्पिरेशन देने की। ठीक है, हम्म जैसे हनी गिरता है, अगर आपने यही प्रॉम्प्ट लिखा है तो वहां तक वो पहुंच जाएगा। बट अगर आपका कोई करेक्ट ऐसा है कि जैसे सोरा में मेरे को वो ब्लड नहीं बनाने दे रहा था। करेक्ट, वो नहीं दे रहा है अभी कहीं। ठीक है, वो उसमें मैंने रेड पेंट यूज करता हूँ मैं वर्ड। हाँ, तो मेरा तो वही चैलेंज था कि मेरे को उसी से निकालना है कुछ, तो मैं स्टोरी में चेंज करने चला गया था। मैंने बोला व्हाट इफ मैं क्विंटन टेरेंटिनो से इंस्पायर होता हूँ और हम्म उसके ब्लड को मैं येलो कलर का कर देता हूँ। हम्म तो येलो कलर फ्लूइड इज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, सो बहुत बार इस यूज पे, किया मैंने। हाँ, सो इसमें बेसिकली रेड पेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, वरना ओल्ड फिल्म नॉलेज, जब ब्लैक एंड व्हाइट थी फिल्म्स तो लोग चॉकलेट यूज करते थे फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लड वाज इक्वल टू चॉकलेट। सो इन केस आप ब्लड नहीं बना पा रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट करो, उसको लिख के बोलो चॉकलेट बह रहा है, वो ब्लड के जैसा लगेगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लिंक योर नॉलेज टू एंड यूज एआई। बहुत हैक्स लगेंगे इसी, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं लगता है कि ट्यूटोरियल विल हेल्प, क्योंकि द वे आदित्य इज आल्सो थिंकिंग इज कमिंग फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ नॉलेज। सो एआई तो आप सीखोगे, बट उसके साथ चार चीजें और हैं जो मुझे लगता है आपको सीखनी चाहिए, सो दैट आप एआई को ज्यादा कंट्रोल कर पाओ ऑल्टोमेटिक। हाँ, सो दैट मेन चीज ये है कि आपको कहानी कहना सीखना जरूरी है, तो आप कहानी बना पाओगे, या पेन यूज कर पाओगे, या पेपर यूज कर पाओगे, कुछ भी। तो अगर आप ये जानते हो कि फिल्म की ग्रामर क्या होती है, हम्म ठीक है, एडिट की ग्रामर क्या होती है, आप डायलॉग बोलना जरूरी है या नहीं जरूरी है, क्योंकि फिल्म वैसा मीडियम है जहाँ पर एक पेन भी एक्टिंग कर सकता है। करेक्ट। वो उसको जिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, फिल्म उसको जिंदा कर देगी। हम्म एक पत्थर की भी कहानी हो सकती है कि वो पहाड़ से टूट के नदी में कैसे गया, हम्म और आप उसको देख लोगे। बट ये सुनाने का एक ग्रामर है कि एक एस्टैब्लिशमेंट शॉट होता है, एक पीओवी शॉट होता है, एक मूवमेंट शॉट होता है। तो ऐसे मतलब मैंने एक बुक में पढ़ा है, वो बुक का नाम मेरे को याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा, बट उसके अंदर एक चीज थी, FLLCTEMP। हम्म ठीक है, फ्रेम, लाइट, लेंस, कलर, टेक्सचर, एस्टैब्लिशमेंट, मूवमेंट और पीओवी। ये FLLCTEMP। वापस आप बताओ, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बिकॉज आई नो बहुत लोग को फॉलो करने में दिक्कत होगा। सो व्हाट इज इट? FLLCTEMP। एफ एल एल सी
EEMP. हाँ, And तो फ्रेम this लाइट is लेंस, frame light lens, कलर, color, टेक्सचर, texture, एस्टैब्लिशमेंट, establishment, मूवमेंट movement, एंड पीओवी। views. Fair. ठीक है, अब इसी के तहत एक इमेज बनती है। Hmm. अब आप कोई भी सीन उठा लो, Hmm. अगर आपने ई यूज किया, जो ई एम पी है Hmm. उसमें से कोई एक चीज यूज होती है एक शॉट में, और अगर आप Correct. मूवमेंट डाल दोगे तो ई से एम पे चले जाओगे, एम से पी पे चले जाओगे, Correct. और कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो पी हो सकता है डायरेक्टर का, वो पी हो सकता है कैरेक्टर का, और अब आप लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ऐड करते जाओगे, वो correct. Correct. है ना। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर है ना, ये है एक्चुअल प्रॉम्प्टिंग जो यहाँ जानी चाहिए। उसके बाद सब कुछ जो निकलेगा वो होगा सही, मतलब फिर नहीं, पिक्चर fair बनती point. जाएगी। करेक्ट। एंड ये एक्चुअली मुझे भी हेल्प करेगा टू फ्रेम दिस, बिकॉज इवेंचुअली हम लोग जितने सिंप्लीफाइड टर्मिनोलॉजीज रहे उतने ज्यादा सबके लिए एक्सेसिबल होगा, और दैट इज व्हाट करेक्ट, द आइडिया इज ऑल टुगेदर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाउ इज द ट्रेडिशनल वर्क गोइंग आदित्य? मतलब होता है ना कि आप ट्रेडिशनल, उसी स्टेज में हो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो एंड एआई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, तो हाँ, हाउ इज दैट बैलेंसिंग इटसेल्फ? ट्रेडिशनल में मुझे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है कि वो कोविड वाली अभी तक खत्म नहीं हुई है, हम्म। वो चल ही रही है। और जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स थे वो अब बन के बाहर आ रहे हैं, तो बाहर ऐसा दिखता है कि आ रहा है कुछ, बट अंदर अभी भी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन सी चीज ग्रीन लाइट होगी नहीं वो होगी, तो हमारा, वी हैव अ कंफ्यूज्ड इंडस्ट्री, दे इंडस्ट्री आर अभी के हिसाब से, मतलब वो कोविड वेव एंड नहीं खत्म हुई। how is AI disrupting it altogether in your एआई mind डरा at रहा least? है, एआई डरा रहा है, एआई गेट कीपर्स को डरा रहा है। और जैसे जैसे वो अडॉप्शन बढ़ेगा ना इस चीज का, सब लोग फोर्स्ड होंगे पिक्चरें एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसे अलग अलग, जैसे आपका ये एआई थिएटर है, वैसे ही पता नहीं फ्यूचर में जाके आप एक स्टूडियो के अंदर अपना वो कर रहे हो, स्क्रीनिंग्स कर रहे हो, आप बड़ी फिल्म बनाने लग गए हैं तब तक बहुत सारे लोग, और एआई अच्छा खासा बन चुका है तब तक। Hmm. और वो फिल्में, क्योंकि उनका, आप देख लो, आप बजट वाइज देख लो, आप आराम से तो ब्रेक इवन मैं करोगे। एक और डायरेक्ट वहां इंसाइट से, बताता हूँ, डायरेक्ट इंसाइट रिलेटेड टू दिस। अभी हमारे पास 3 ब्रांड हैं, आई वोंट नेम देम, all three have completed to complete AI ecosystem, and these are big brands. I'm talking about top Indian brands, and all these three we have had discussions that this year we are replacing all the traditional production, and especially in ad world, matlab the turnaround time of the project and budget, बजट it has collapsed to an extent that ad world is shifting to AI very soon. In next 1 year, you will have only AI ads. That's एआई also a एड्स, possibility. करेक्ट, करेक्ट, And करेक्ट। this is also answering Jeetu's question of monetizing. अगर आप मुझसे पूछोगे तो this is the best time to get into this. एक हाँ, साल हाँ। लगेगा for the industry to settle, but this is going to be very disruptive altogether. Ad world for sure. Film world, it will take some time. हम्म, Also, thank you so much, Devesh, altogether, because Devesh has been jotting down in the comments everything we have been talking, ओह, talking especially with the words थैंक and यू, everything. So, thank you, Devesh, for doing that. That will help others a lot. करेक्ट। Uh, and also, I just wanted to understand what next is for you and AI creators, and where should they focus, because बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास भी ऐसे आते हैं where मुझे मन करता है कि मैं जाके बोलूं कि प्लीज फोकस ऑन द राइट थिंग्स। VO3 पे अकेला फोकस मत रखो, या इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे अकेला फोकस मत रखो, हाँ, बिकॉज हाँ, बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज एंड बहुत पॉसिबिलिटीज है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव डन, बिकॉज आपने क्लेमेशन जनरेट किया है, क्लेमेशन अलग आर्ट फॉर्म है जो कि बहुत समय लेता है हर एक फ्रेम पे। You have generated things in 2D art, and I have seen that आप formats पकड़ते हो या styles पकड़ते हो, so how can, like, बाकी लोग कैसे यूज करें ऑल टुगेदर एआई को? यार, एक तो वो चीज कि कोई एक टूल सही नहीं है, बहुत सारे टूल्स, क्योंकि ये एक ही साइड डेवलप हो सकते हैं, मतलब आप इसको वैसे समझो कि एक टूल सब कुछ नहीं कर सकता, एक स्क्रू ड्राइवर है, एक स्पैनर है, एक अलग अलग चीजें हैं सारी की सारी, हम्म। और वैसे ही ये टूल्स डेवलप होंगे। तो आपको मेन चीज ये करनी पड़ेगी कि इन सारे टूल्स में से अपना सामान बाहर निकाल के आप एक कंसिस्टेंट थॉट कैसे बना पा रहे हो, हम्म। ना कि एक कोई से ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो ये भी कर सकता है वो कर सकता है। और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में नहीं हुआ कभी ऐसा, ना कहीं आप देखोगे। अभी हम्म। पहले एफसीपी बहुत होता था इंडस्ट्री के अंदर, प्रीमियर आया, प्रीमियर करेक्ट। पे लोगों ने करेक्ट। लेना चालू कर दिया, उसके बाद दाविंची आया, अभी प्रीमियर सही चल रहा है इसलिए दाविंची प्रीमियर हो रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा ट्रैक करके देखोगे कौन सा सॉफ्टवेयर किस साइड डेवलप हो रहा है, हम्म। आपको अपने आप पता चल जाएगा मेरे को किसकी जरूरत है। करेक्ट।
क्योंकि अभी दोनों अभी चीजें बड़ी होंगी। अभी तुरंत मतलब एक तरफ फ्लो पे लोगों का फोकस है, लेकिन सीडांस ने जो किया है वो कुछ और ही है। ये आई मीन सीडांस हैज कम आउट कि मून भाई वैली, एक ही मून वैली अलग लेवल पे कैमरा कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है। मून वैली तो मतलब उनने वो बना लिया है आपको कि आप जो मेरा बीच में मेरा एक थॉट आया था कि मैं एसेट्स बना लेता हूँ, उनको मैं मैच मूविंग कर दूंगा जो मेरे को आता है, करेक्ट। बट वो एक अलग ही आप फिर घुस गए दुनिया में और फिर आ ही नहीं रहा सामान, कहीं गिरावी टाइम फंस गए या ये हो गया वो हो गया, तो फिर अब वापस पहुंच जाते हैं कि प्रॉम्प्ट से बनाते हैं और अब बिना रेफरेंस के बनाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं सोरा के अंदर फंस रहा था बट VO3 के अंदर मैं आराम से बाहर निकल के आ गया, और अगर मून वैली आ गया है तो VO3 का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग है ये इनको डिफरेंट बनाती है अपने आप डिफरेंट से। बनाती है, एब्सोल्युटली। और इसीलिए मैं वही बोल रहा था, फिजिक्स, अगर आप VO3 कर रहे हो तो रेसिस्ट रहो। गूगल ने इतना रेसिस्ट मॉडल खड़ा किया है, एंड नॉट इन अ बैड वे, लाइक बिकॉज हाँ देयर इमेजेस आर लोकेशन मार्क। तो अगर आप कोल्हापुर लिखोगे ना तो यू विल गेट अ प्रोफाइल जो कोल्हापुर का आदमी होगा। तो आप जब भी प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो तो एकदम स्पेसिफिक रेसिज्म में चले जाओ कि मुझे इस जगह का, इस गांव का आदमी चाहिए, यू विल गेट समथिंग वेरी डिफरेंट एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो। करेक्ट सो करेक्ट। एक छोटा क्वेश्चन देवेश ने पूछा है। आई मीन आई डोंट नो अगर आप कंफर्टेबल हो आंसर करने के लिए। सो इज देयर अ रोड मैप टू एंटर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम एआई पर्सपेक्टिव? आई मीन इफ यू AI वांट टू टेक दैट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन। यार, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप कोई भी एक, जैसे मैं करता हूँ, मैंने अभी एक ही बार किया, नेक्स्ट में डालने वाला हूँ, बट मैं हम्म, फेक ब्रांड्स बनाता हूँ हम्म, और वो एक कमोडिटाइज चीज का होता है, और फिर मैं अपने थॉट से एक ऐड बना देता हूँ, फिर हम्म, मैं डाल के दोस्तों को बेचता हूँ कि किसी को जरूरत हो तो बता देना, इतने इतने प्राइस में मैं कर दूंगा, और फिर उसके आगे हम बात कर सकते हैं। हम्म। तो एक बार आपके एड्स चलना चालू हो गए, एक दो क्लाइंट्स आपने निकाल दिए, उसके बाद फिर आपकी डिमांड बनेगी। अगर आप कर रहे हो सही काम तो डिमांड बननी चाहिए, क्यों नहीं बनेगी। तो मेक सेंस। आई मीन इसमें मतलब बेसिकली आदित्य सिंह, आप स्पेक एड्स बनाओ, बाहर डालो, लेट पीपल नोटिस यू। दूसरी हाँ चीज जो मैं ऐड करूंगा, अभी एआई आर्टिस्ट के लिए मार्केट इज ओपन विथ बोथ हैंड्स। ट्रस्ट मी, जो हमारे पेज पे वी हैव हैड ऑलमोस्ट ऑल द बिग एजेंसीज कॉन्टैक्टिंग अस। तो अगर आप जेन्युइनली एडवर्टाइजिंग में घुसना चाहते हो, सेकेंड ट्रेडिशनल रूट वुड बी आप गूगल सर्च करो टॉप 50 एड एजेंसीज कौन सी हैं। एंड समटाइम्स इट आल्सो हेल्प्स कि टॉप 50 के बाद वाले 50, बिकॉज जनरली टॉप्स हायर द टॉप्स। सो अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ 100 एड एजेंसीज। विद जीपीटी फाइंडिंग दिस लिस्ट इज नॉट डिफिकल्ट। आप उन सबको को एक एक मेल लिखना शुरू करो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल सेट। attach some of your works. Right now, hiring for AI is an all-time high. Even AI Theater will be starting the hiring process from 1st August, but it's not just us. You have at least every single agency right now, ad agency right now is hiring. So मैं भी मिल please के go आ चुका ahead. हूँ एक दो। Correct, correct. So you would know what I'm talking about. So the market is bubbling. आप अगर कुछ encash करना चाहते हो, it's a good time. तो आप अभी spec ads बनाओ, spec ads को different agencies को भेजो. It is a very very sure shot professional career हाँ choice that you can ऐसे make. ही होता है ना। क्योंकि वो Thank वही you. है। आदित्य, मैंने आपसे एक्चुअली बहुत बार आपको इंटरप्ट किया है। आई डोंट नो, वो फ्लो में हो गया आई थिंक। बट एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू कंक्लूड विथ योर प्रोसेसेस, एनीथिंग टू whoever is listening, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो, there is a closing statement that you can give to our discussion. I again will love to talk to you at length, but just हाँ because of time slot. Yeah. हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सारी बातें हो चुकी है। मैं यही बोलूंगा कि फिल्में देखते रहो, पुराना जो हो चुका है वो बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है, और जो भी कहने के तरीके और जो FLLC TEMP और वो सारी जो चीजें हैं, उनके अंदर से जब आप कुछ भी सोचना चालू करोगे ना, वो एकदम वो फॉर्मूला है काइंड ऑफ, आपको अपनी वॉइस और अच्छे से मिलेगी। तो ये मेरे को लगता है कि ये चीज बढ़िया चीज है। मैंने एक्चुअली इसी से रिलेटेड एक कंपैरिजन अपनी टीम को दिया था। द कंपैरिजन वाज दैट कि आप चार्ली चैपलिन को समझो, ऑडियो नहीं था। देयर वाज नथिंग रियली दैट वाज वर्किंग इन फेवर ऑफ हिम। स्टिल विद दोस हेवी कैमरास, चार्ली चैपलिन कुड मेक अ सर्टेन सेट ऑफ मूवीज। आप एआई के एवोल्यूशन को वैसे ही समझो, इट हैज स्टार्टेड विद नो साउंड, जस्ट लाइक फिल्म डिड। तो और बस ये है कि वो जो चीज 100 साल में हुआ था वो अभी 1 साल में हो रहा है। तो आपको बस वो स्टेप्स भी आप अगर फॉलो कर रहे हो कि ऑडियो नहीं है तो स्टोरी कैसे बतानी है, आपको बहुत सारे साइलेंट मूवीज में मिल जाएगा। ऑडियो है बट लिमिटेड है तो कैसी स्टोरीज बतानी है, वो आपको मिड रेंज ऑफ मूवीज में वो आइडियाज मिलेंगे। एंड अगेन, आप अगर और एडवांस जाना चाहते हो विद वीएफएक्स एंड एवरीथिंग, तो मॉडर्न मूवीज का पैलेट आपके लिए ओपन है फॉर फैंटेसीज, वीएफएक्स, एंड दैट्स अ गुड सजेशन की फिल्में देखो और देखो एआई किस फिल्म के पास है, यू और विल गेट अ सेंस। एक और हल्का सा डिटेल मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिन कंट्रीज में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, वहां की वहां की कोई फिल्म। फिल्म देखना,
Iranian हाँ, वो films are the best. ईरानियन फिल्म, मतलब मैं वहीं जाने वाला था कि वो चीजें इतनी सिंपल हो जाती हैं क्योंकि उस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और Correct. वो आ कहाँ से रहा है, वो जब सब जगह से आपको दबाने की कोशिश हो रही है तब वहां से वो एक थॉट निकलता है जिसको कोई नहीं दबा सकता। Absolutely. तो ये और ऐसा भी कर लेते। नहीं, बट ब्रिलियंट डिस्कसिंग आदित्य। अगेन आई फील कि मतलब होता है ना कि दिस एंटायर डिस्कशन हैड अ लॉट ऑफ नेम थ्रोइंग। हमने मून वैली डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड few like we see dance is something we could not discuss in detail. After this discussion ends, next we'll be talking to Sunny. But before the discussion, after the discussion is ending, there will be a link in the comment section for the group as well, so you can join there because we'll be putting all these discussions in a minute form and whatever has come out of it in the group for everyone to access. हम लोग कोशिश करेंगे लिंक भी क्रिएट कर पाए, हाँ मतलब इवन द लाइव विल बी अवेलेबल फॉर पीपल टू वॉच. So thank you so much for adding to it, and it was lovely talking to you in person finally, because I've been following your work and I've loved the identity you are creating, and I'm further mind blown knowing that you're using only GPT and Sora, because I know Sora is not the easiest software. It is cheap, but I have given up on Sora multiple times. So glad that you stuck with Sora and you could. सोरा के साथ में ऐसा लगता है कि इसको थोड़ी देर आप सोने दो, कल वो सोरा है, वो सोरा है, exactly. So Sora requires patience, and glad that you have that patience. I just hope that I keep seeing what you are doing. It's a pleasure watching what you are doing, and it was a pleasure talking to you. So thank you so much for joining. Okay, thank you. Lovely, Aditya. Bye. Bye. So guys, if there is a question in the comments that I have missed, वो मैं तुरंत cover कर दूंगा. Anything that I think सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं हमारे इसके लिए. सो हम लोग एक्चुअली सनी इज विद अस, तो लेट्स कंटिन्यू द कन्वर्सेशन विद सनी. Sunny is very different from Bharat sir and Aditya. He comes from a non-film background, and he is the only person in today's group that is coming from a non-filmmaking background, I guess. But the work Sunny has been doing is amazing in itself, and I can personally see in his work that a lot of adjustments are going on in the post as well, where he works really hard for his shots, and it is joined together very well. One of the few people who actually works on the sound effects in such detail to create that mood and vibe, and it's really inspiring because I know that your background has been tech background, Sunny. So it really impresses me that in such a short amount of time, how much of filmmaking you have grasped. And the reason to keep you in the end was also that, because once they have talked, I would want to know your perspective of how you have entered this from a tech background to a background which requires insane sense of filmmaking knowledge. So योर प्रोसेस इज समथिंग जो शायद सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना. बहुत लोग बिल्कुल न्यूट्रल बैकग्राउंड से एआई को अप्रोच कर रहे हैं. तो दिस इज वन डिस्कशन जो मैं शायद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली फ्रॉम कम्युनिटी पीओवी ऑल टुगेदर. सो वेलकम सन. हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और रियली थैंक यू कि तुम्हारी ऐसे कम्युनिटी है जहाँ पे हम अपना काम शेयर कर सकते हैं, और बहुत लोग बहुत चीज़ें सीख भी रहे हैं, बिकॉज आई थिंक और कोई ऐसी कम्युनिटी है नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं मिली, जहाँ मैं कोई बहुत सारी चीज़ें सीख सकता था. सो आपका वो जवाब ये रहेगा कि मैं इसमें कैसे आया. तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ भी नया होता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर. एंड फिल्म देखने का, जैसे मैंने बताया था अपने बायो में भी, कि मुझे काफ़ी शौक है. एंड इन माई कॉलेज डेज ऑल्सो आई प्लान कि कभी कोई शॉर्ट फिल्म बनाए फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ, बट वो कभी हो नहीं पाया बिकॉज पढ़ना है एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम पे. सो जब से ये आया है, आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग एंड आई वाज सीइंग कि हाँ, इसमें कुछ पोटेंशियल है, जो मेरे दिमाग में कुछ कहानियाँ हैं या मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैं शायद उसको स्क्रीन पे लेके आ सकता हूँ. तो यही यही एक तरीका था कि मैं इसमें आया, एंड मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे मिले. और आई थिंक आपकी कुछ वीडियोस भी देखी और बाकी लोगों का भी काम देखा, और उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला है. एंड आई ट्राई टू फॉलो, एंड आई एम ट्राइंग स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. लाइक बाकी जो भरत सर और आदित्य, they are experienced, but I am not, so I'm still learning. And बहुत Honestly, in AI, we all are students right now. One reason why I don't want to make tutorials, कि मैं क्या tutorial बनाऊं, मैं like हर दिन कुछ नया आ रहा है, हर दिन कुछ नया exploration है. So we all are, हम सब students हैं अभी के लिए. yes, अभी View 3 का इमेज टू वीडियो आ गया तो बहुत और अच्छा हो गया. have more control over it. और आपने मतलब आपका पहला सेट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या था? आप क्या कुछ फ्री सॉफ्टवेयर से आपने शुरू किया या आपने सब्सक्रिप्शन लेने शुरू किया? अभी आप कौन कौन सा एआई
प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो, अगर For थोड़ा एक बेसिक आइडिया दो। for image generation, I was using ChatGPT and also Midjourney. हम्म। Started with ChatGPT because मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन था, because मैं अपने काम के लिए भी उसको बहुत यूज करता हूँ. देन जब कुछ ठीक ठाक बनने लग गया, देन आई वाज लाइक कि अगर इमेज क्वालिटी अच्छा होगा तो आई थिंक आई कैन मेक बेटर वीडियो. हम्म। So then I switched to Midjourney and prompts वगैरह I create in ChatGPT only. Like हम्म। उसमें एक मेरी फीचर है, like एक बार आपने वो क्रैक कर लिया अच्छा बनाना, तो वो ऑटोमेटिकली आगे भी आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट ही देता है जिसमें हम्म। रिजल्ट्स अच्छे हैं. Then for video I was also using Sora at one point, and then हम्म। I switched to Kling हम्म। AI. हम्म। It was I think 1.5 or 1.6 at that time. राइट। And I started off with that, and then I'm still using Kling for because उसमें कुछ कुछ शॉट्स, खासकर स्लो मोशन शॉट्स बहुत अच्छे बनते हैं. और क्लिंग बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब मैंने जो नोटिस किया कि 70-80% हिट रेट है क्लिंग का, मतलब वो आपको ऐसा शॉट देगा जो आप यूज कर सकते हो, तो use कंपेयर टू रनवे जो आपको शायद 30-40% यूजेबल शॉट देता है, 70% बैड जनरेशन से मच मोर एग्री किया था जब आपने ग्रुप में कहा था कि वो स्कैम है. बिकॉज एक्सपेंसिव। लाइक वो लगा यार, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल सही बात बोली आपने. So सो I recently हाँ, started सॉरी। using Veo. So Veo 3, like it's 4-5 generations के बाद ही you get the desired shot, like the experience. वीओ थ्री के साथ वही है, मैंने रिवर्स नोटिस किया है, इवन भरत सर ने वो बात की पूरे प्रॉम्प्ट की, समटाइम्स वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर इमेज टू वीडियो में जा रहे हो, जब मैं टेक्स्ट टू वीडियो में जा रहा हूँ तो मैं सेम फॉर्मेट यूज करता हूँ। आप जब इमेज टू वीडियो में जा रहे हो तो आप जितना सिंपल प्रॉम्प्ट रखोगे, मत एक्सप्लेन करो कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर इज देयर इन द इमेज। आप सिर्फ डायलॉग पे फोकस करो, कैमरा मोशन पे फोकस करो, आपको बेटर जनरेशन वीओ थ्री पे भी मिलेंगे। सो जो लंबा प्रॉम्प्टिंग फॉर्मेट है वो टेक्स्ट टू वीडियो वीओ थ्री में वर्क्स, but when it is image to video, keep it very simple. It is about delivery and expressions altogether. Even हमारा जो अभी नया सोशल्स का कंटेंट लाइन है अबाउट कंपेयरिंग एक्टर्स, एक्चुअली इट इज एक्सरसाइज जो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं कि हम कितना फाइन ट्यून कर सकते हैं इमोशंस को वीओ थ्री पे। तो पहले 2-3 बार हम लोग बहुत दूर थे, मतलब 6-6 जनरेशन के बाद वी वर रीचिंग, बट अब हम लोग शायद 1 या 2 जनरेशन में वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दी, एंड वी ओनली वर्क ऑन वॉइस क्वालिटी एंड फोकस। जब आप इमेज के साथ काम कर रहे हो वीओ थ्री में, तो वो बहुत हेल्प करेगा, एंड आपकी जनरेशन 1 और 2 50% हिट रेट में तो जरूर आ जाएगी कि आपके 2 में से 1 सही मिलेगा। सो वो एक चीज है जो मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर आप उससे थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहे हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई. अभी भी मैं उसको पूरी तरह एक्सप्लोर कर नहीं पाया हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल स्टक विद द Kling, बिकॉज मेरे को हम्म। उसमें काम, अगर मेरी चीजें उसमें हो रही हैं, देन आई डू नॉट ट्राई समथिंग एल्स. आपको जरूरत नहीं है वहां जाने की। 2 क्वेश्चन है सानी, जो कि थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन साइड से है, तो वो अगर टॉपिक पे थोड़ा सा हम मूव करेंगे तो एक issue_0u05 का क्वेश्चन है अबाउट साउंड इफेक्ट्स, ऑफ हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड इफेक्ट्स, एंड आई थॉट कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना अच्छा रहेगा। 2 रीजन से, एक तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आपने एडिटिंग क्या एआई के बाद सीखी या पहले से जानते थे, एंड दूसरा कि आप कितना एसएफएक्स यूज करते हो, एंड व्हाट आर योर सोर्सेज टू गेट एसएफएक्स, या ये नेटिव जनरेशन है, अगर आप वो समझा पाओ तो। नेटिव तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हम्म। और एसएफएक्स बहुत ज्यादा भी नहीं यूज किया है. आई थिंक आपके 1 या 2 चैलेंजेस में तो मैंने म्यूजिक को ही यूज किया है. हम्म। आई थिंक जो फियर वाला था उसमें एसएफएक्स यूज किया था, जहाँ पे एक कीबोर्ड की टाइपिंग की साउंड थी, हम्म। और माइक्रोवेव चल रहा था, एक उसका साउंड था. और इससे ज़्यादा आई थिंक मैंने कहीं एसएफएक्स यूज़ नहीं किया है. बट आई यूज़ पिक्साबे, एंड मेरे पास एलिमेंट्री भी साउंड का भी सब्सक्रिप्शन है, तो हम्म। मैं म्यूजिक एंड एसएफएक्स वहाँ से भी सोर्स करता हूँ, और बहुत अच्छे सो अच्छे एसएफएक्स हैं वहाँ पर. एंड आपने एडिटिंग कब शुरू की थी प्रॉपर, मतलब ये एआई के लिए आपने सीखा, या व्हाट सॉफ्टवेयर आर यू यूज? मैं डिविंची रिजॉल्व यूज़ करता हूँ, हम्म। और मैं उसको वैसे ही लाइक पहले कभी भी जैसे 1 साल में 1-2 बार वैसे ही यूज़ कर लेता था, कुछ ना कुछ, जैसे फैमिली वीडियो बनाना हुआ या कुछ. बट ऐसे कभी मूवीज के लिए नहीं यूज किया, इस तरह से चीजें बनाने के लिए नहीं किया. और धीरे धीरे जब आप करने लग जाते हो, आपको चीजें पता लगने लगती हैं. अगर कुछ नहीं भी पता तो यूट्यूब पे सब है सीखने के लिए. एक एक चीज है जो आई थिंक बहुत पहले भोला ने पूछी थी, कि वो कैसे 8 सेकंड के वीडियो को 60 सेकंड करे, तो मैं बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ कि बहुत लोग हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन को ही नहीं समझते हैं, कि वो आपको जरूरत है कि आप एआई से जब वीडियो बनाते हो तो आपको पोस्ट प्रोड्यूस करना है। आप एक ओवरऑल बहुत ही सिंपल तरीके में समझा पाओगे क्या कि पोस्ट प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, एंड कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं? अगेन, अगर कुछ आप अगर 1-2 यूट्यूब चैनल के लिंक्स बता पाओ जहाँ पे लोग वो सीख पाए, तो दैट विल हेल्प देम। मैं आपको एग्जांपल से समझा पाऊंगा जो प्रॉब्लम्स मेरा फेस मुझे आई थी, तो मैंने उनको कैसे टैकल किया. आई थिंक मैंने एक कमेंट में आपको बताया था कि मैं एक क्लिप जनरेट नहीं कर पाया जिसमें कि द गर्ल वाज अनप्लगिंग द लैपटॉप.
द करेक्ट, वायर। करेक्ट, करेक्ट। द वायर वाज अ प्रॉब्लम, इवन इन द फिल्म इट वाज, वो अपने आप निकल रहा था। करेक्ट। यस यस यस। तो उसमें ऐसे ही हो रहा था कि जितना भी मैं जनरेट कर रहा था व्हेन शी वाज पुलिंग इट, तो उसके अंदर से एक्स्ट्रा वायर आई डोंट नो कहाँ से और आ जा रहा था। हम्म, तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉम्प्ट को उल्टा कर दिया। मैंने कहा आप उसको प्लग कर दो। तो हम्म, वो प्लग करके मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में उसको रिवर्स प्ले कर दिया। तो एक ये ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम किसी क्लिप को मतलब ऐसे नहीं सोचें कि शायद ये बेकार है, मे बी वो यूजफुल है, अगर करेक्ट। आप रिवर्स चलाएंगे शायद तब। तो ऐसा ही मैंने कुछ जैसे भरत सर ने कहा था कि वो इंटरकनेक्ट करना है क्लिप्स को। मेरे पास हम्म, एक जूम इन शॉट था उस लेडी का। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम वीडियो व्हिच आई डिड फॉर द चैलेंज फियर। हम्म, उसमें द कैमरा वाज जूमिंग इनटू हर फेस एंड शी वाज लुकिंग एट समथिंग। राइट। वांटेड टू शो दैट कि ये माइक्रोवेव की तरफ देख रही है, हम्म, but because I was not able to create a shot where she was both of looking them in. together. Yes, Correct. yes. So what I did is I did a 10-second clip on Kling, the zoom in shot of the girl, and I divided it into parts. Then I started off with the girl's clip and added the SFX of the microwave. हम्म, So it gives you, the feel that the microwave is running in front of her. And then I moved on to the microwave clip and then back to the second part of her clip, which was already like totally zoomed in. So that actually created a film-like feel in that scene. सो ये पोस्ट प्रोडक्शन का जैसे आपने पूछा, ये वो इम्पोर्टेंस है एआई रॉ क्लिप्स में कि आई थिंक अगर सब लोग इस तरह से सोचेंगे तो बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं। मे बी आगे जाकर शायद इसकी जरूरत ना एक पड़े पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं चाहूंगा आप भी देखो, जो भी सुन रहे हैं देखें, बिकॉज वो एडिटिंग के फंडामेंटल, पोस्ट प्रोडक्शन के फंडामेंटल को आपको समझा देगी। इट इज कॉल्ड कुलेशॉव इफेक्ट। अगर आप ढूंढ पाओगे तो कुलेशॉव इफेक्ट बेसिकली एक रशियन एडिटर था जिसने ये प्रूव किया था कि जो शॉट्स आप अगल बगल में रखते हो, हर बार जब शॉट आप अगल बगल में रखोगे तो स्टोरी बदल जाएगी। सो बेसिकली कुलेशॉव एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया था एंड ही हैड कट इट विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। आइडिया वाज कि जो भी लोग हैं वो कभी भी फिल्म को एक शॉट, वन शॉट एट अ टाइम नहीं देखते। तो अगर मेरे पास एक 8 सेकंड का वीडियो मेरा है और दूसरा 8 सेकंड का वीडियो सनी का है, तो मैं उन दोनों एक्सप्रेशंस को बस कट करके, कि वो मेरा 3 सेकंड, फिर सनी का 3 सेकंड, फिर मेरा दो, फिर सनी का दो, फिर मेरा एक और सनी का एक, मैं एक ऐसा इंटरैक्शन क्रिएट कर सकता हूँ जहां पे मैं अपने जगह पर हूँ, सनी अपने जगह पर है, बट आपको लगेगा कि हम लोग फेस ऑफ कर रहे हैं। तो ये एडिटिंग का मैजिक है। अगर आप कुलेशॉव इफेक्ट ढूंढ सकते हो, ये बहुत छोटा ब्रेक इन अ वेरी बिग चंक है, बट समझने के लिए कि आप कौन से शॉट से एंड एडिटिंग के यूज से आप एआई शॉट्स में कितना ज्यादा इमोशंस और मीनिंग भर सकते हो। क्योंकि अभी आप स्टैंड अलोन शॉट्स देखोगे तो वो इमोशनलेस लग सकता है, मगर आप जब दो शॉट को जोड़ते हो तो वो एक इमोशन क्रिएट करता है। साउंड और एसएफएक्स, जो कि इशू का क्वेश्चन भी था, वो उस एनवायरनमेंट को बांध देता है साथ में, तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों चीजें साथ में हमेशा से थी। ये दिस इज कोर फिल्म मेकिंग टेक्निक, जो आई थिंक सनी आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करके क्रैक किया है। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये बहुत एसेंशियल है, आई थिंक फिल्म मेकिंग का फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विच यू हैव क्रैक्ड, फर्स्ट लेवल फंडामेंटल ऑल टुगेदर। एक बीच में बस क्वेश्चन मैं प्लग इन कर रहा हूँ। अभिषेक_0240 ने पूछा था, विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर शुड आई लर्न फॉर एनिमेशन वीडियो। मैं आपसे दाविंची कर देता सजेस्ट, बट दाविंची थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टू स्टार्ट ऑफ ऑन। सो अगर आप लोग अडोब प्रीमियर का कोई भी वर्जन ढूंढ सकते हो, बहुत मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर है अगर आप ओवरऑल एडिटिंग को देखते हो। सो प्रीमियर आसान है समझने के लिए, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं एंड वो आप इजीली यूज कर सकते हो फॉर योर वर्क। डविंची बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है जब कलर ग्रेडिंग और कुछ चीजें आती है, बट डविंची थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप प्रीमियर से स्टार्ट करो। सनी आप डिसएग्री करते हो कि डविंची इजी है, तो प्लीज आप वो भी कर सकते हो, बट आई पर्सनली फील डविंची इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड जब कोई शुरू कर रहा हो। मैंने तो आई थिंक मैंने स्टार्ट ही क्योंकि फ्री में वही अवेलेबल था आई थिंक स्टूडियो। डविंची पूरा पूरा का पूरा ओपन सोर्स एंड फ्री है, करेक्ट। दैट वाज द रीजन मैंने वो यूज किया और फिर उसी को प्रैक्टिस करके अभी अभी आई थिंक आई एम कंफर्टेबल इन दैट। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। मैं बस वो अभिषेक को बोल रहा था कि आप डविंची एक्चुअली में फ्री है, अडोब आपको क्रैक और हैक करना पड़ेगा, तो अगर आप प्रीमियर प्रो हैक कर सकते हो, थोड़ा सा बस ज्यादा आसान है। इट इज सिंपल, वो बहुत कैपकट जैसा ही है। अगर आपने कैपकट या मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए हैं तो वो आप प्रीमियर से कर सकते हो। चैताली had asked Sunny about adding voiceovers and voices into this. Also हमारे ग्रुप पे भी किसी ने पूछा था कि ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। एनी एक्सपीरियंस विद दैट टिल नाउ, या आप अगर कुछ एआईज बता सकते हो जहां से लोग ऑडियो जनरेट कर सकते हैं।
11 लैब से आई थिंक बेस्ट अभी तक कुछ है नहीं जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में है, और आई थिंक उनका वर्जन 3 और भी अच्छा है, जिसमें लाइक हंसने का या कोई और इमोशन आपको उसमें देना है आप कर सकते हो, बट उसमें अभी भी बहुत एरर आता है, तो आई स्टिल यूज हम्म। बी। बट अभी लास्ट चैलेंज के वीडियो में आई यूज 11 लैब्स फॉर द नरेशन ऑफ द वीडियो एंड इट डिड क्वाइट वेल। सो मैं दोनों पार्ट आंसर करता हूँ। 11 labs इवन वी यूज 95% टाइम्स। देयर इज अनदर एआई जो आप ट्राई कर सकते हो फ्री में, दैट इज लोवो एआई। नाउ लोवो एआई टेक्निकली फ्री नहीं है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ वॉइसेस, गुड इंडियन वॉइसेस एज वेल। हम लोग जो हैक यूज करते थे बिफोर 11 labs वो था कि लोवो एआई में ऑडियो जनरेट कर लो, डाउनलोड करने पे वो क्रेडिट मांगता है, सो वी नेवर डाउनलोडेड इट। स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दो और ऑडियो को प्ले कर दो, दैट एंटायर ऑडियो गेट्स कॉपीड। सो अगर आप फ्री का कुछ हैक ढूंढ रहे हो फॉर वॉइस ओवर्स एंड सम कैरेक्टर्स, आप लोगो एआई ट्राई कर सकते हो। 11 labs एवरग्रीन है, tried and tested है, so 11 labs is one thing that can be used. And for sound effects, you talked about Elemental, right? For subscription. There's one more thing guys you can try, that is Envato. Envato पे you also get a few of the models जो कि AI generator models है। VO3 भी Envato पे अवेलेबल है। Envato आपको कुछ टेम्पलेट्स भी देगा आफ्टर इफेक्ट्स पे, अगर आप कुछ स्पेशल क्रिएट करना चाहते हो, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, वो सब Envato पे अवेलेबल है। सो दैट इज अनदर वन ब्लैंकेट सब्सक्रिप्शन यू कैन थिंक, जहाँ पे आपको AI जनरेशन से लेकर के SFX म्यूजिक सब कुछ मिलेगा, जस्ट टू गेट दैट क्वेश्चन आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू सनी अगेन, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग हैं जो शायद नॉन फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से इसमें आ रहे हैं, तो आपके लिए चैलेंजिंग कौन सा पार्ट था? एआई के अलावा आपने क्या सीखा और क्या आपको समझने की जरूरत पड़ी? अगर आप उस पर थोड़ा फोकस करके सबको बता सकते हो कि क्या क्या चीज पे फोकस करना है टू मेक समथिंग गुड। आई थिंक सबसे चैलेंजिंग था कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स। एंड एक बात आपने शुरू में भी बोली थी, वो मैंने भी सोचा था कि जब हमारी डिस्कशन होगी हम लोग बात करेंगे, इट वाज कलर ग्रेडिंग। तो एटी में जैसे कलर ग्रेडिंग इमेज जनरेशन पे ही शुरू हो जाता है, करेक्ट, यूजली हम करेक्ट, बाद में एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए ये समझना कि एक अगर शॉर्ट फिल्म है या कोई रील है, अगर वो कनेक्ट तभी करती है जब उसमें कलर ग्रेडिंग एकदम इक्वल हो सभी सीन्स में। तो मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था विद डिफरेंट डिफरेंट कलर टोन्स, एंड वो बात नहीं बनती। तो इसमें सबसे पहले कलर ग्रेडिंग फिल्म मेकिंग में बहुत जरूरी है, सो एवरीवन शुड स्टडी, इवन आई एम स्टडिंग इट। इसलिए मैंने अपना लास्ट वीडियो मोनोक्रोम में किया था, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। एंड आई थिंक कलर ग्रेडिंग से बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर आप मूवीज देखें, डून देखें, ब्लेड रनर 2049, सारे इमोशंस कलर पे डिपेंडेंट, मतलब कलर कलर थ्योरी समथिंग जो शायद, अगर स्पेशली जो लोग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के वीडियोस बनाने का सोच रहे हो, फिल्म में फिर भी कलर कैन, बिकॉज इट्स अ लॉन्गर प्रोडक्ट। अगर आप एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में घुस रहे हो, प्लीज जाके कलर थ्योरी पढ़ लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू डिलीवर अ मैसेज। सॉरी फॉर द प्लग इन, प्लीज कंटिन्यू। तो यही मेनली मुझे कलर ग्रेडिंग में और एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करने में इशू आ रहा था, जो आई थिंक जब मैंने मिड जर्नी V7 यूज किया, उसमें जब ओमनी हम लोग देते हैं तो बहुत बार उसने एक सही कैरेक्टर को ही जनरेट किया है। तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं पूरी स्टोरी में, मैं उनकी पहले जनरेट करता हूँ, उसके बाद सीन 1 से शुरू करता हूँ विद ओमनी रेफरेंस, जो भी उसमें कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इफ यू हैव ट्राइड, क्योंकि मैं ट्राई करने जा रहा था, अभी तक नहीं किया है। व्हेन इट कम्स टू मल्टी कैरेक्टर्स, ओमनी रेफरेंस काम आता है? बिकॉज मेरे लिए दो तीन जगह ऐसा हो रहा है कि जब मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो सेम फेसेस भी बहुत जगह छप जा रहे हैं, बिकॉज आप रेफरेंस करते हो। तो हैव यू ट्राइड जनरेटिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑन मिड जर्नी? यस आई ट्राइड इट, बट वो वही चीज होती है जैसे आपने बताया कि वो सेम फेस बनाता है मल्टीपल कैरेक्टर्स के। यू कैन गो टू द एडिट, आप वो ब्रश लेकर वो एक फेस को आप हटा दीजिए, जो हटा करके फिर रीजनरेट आप करते हो? रेफरेंस दीजिए उस नए कैरेक्टर का, एंड देन ओह, एडिट, एंड वो वहां करेक्ट कर देता है। ये हैक मैं भी ट्राई करूंगा, मैंने अभी तक किया नहीं था। मैं दूसरे जगह से उसको जनरेट कर रहा था, बट फेस हटा करके रीजनरेट करना है समथिंग मैं भी ट्राई करूंगा। यस, एंड तो फ्लक्स भी लोग यूज कर सकते हैं फॉर लाइक हाँ, सिंपल से। मतलब लाइक Envato, देयर इज अनदर थिंग, फ्री पिक, जिसका आप सब्सक्रिप्शन सोच सकते हो। उसमें यू हैव कैरेक्टर ट्रेनर, तो जब तक कि आप सिंगल कैरेक्टर स्टोरीज करना चाहते हो, फ्री पिक ऑल्सो हैज अ कैरेक्टर ट्रेनर, बट अगेन मल्टी कैरेक्टर में वो फिर से हगेगा। बट व्हेन इट कम्स टू सिंगल कैरेक्टर जनरेशन, एटलीस्ट स्मॉलर स्टोरीज, यू कैन ट्राई फ्री पिक का एआई सूट एज वेल। दैट इज ऑल्सो अ ब्लैंकेट सब्सक्रिप्शन, सो आपको उसके अंदर मल्टीपल इमेज जनरेटर्स एंड मल्टीपल वीडियो जनरेटर्स मिलते हैं। सो अगर आप एक किसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो कि
कितनी कुछ लूं, तो आप फ्रीपिक या इन्वाटो जैसा प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हो, उसमें आपको म्यूजिक, एसएफएक्स, एडिटिंग रिसोर्स, प्लस यू फाइंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट जनरेटर्स टू ट्राई. सो दैट इज अनदर थिंग जो आप लोग ट्राई कर सकते आई थिंक अगर किसी को शुरू करना है इसको बनाना, हो. तो आई हाँ. थिंक स्टार्ट विद समथिंग जिसमें कि हर सीन अलग हो, हम्म. कंसिस्टेंसी ना हो, सो दैट बिकॉज अगर वो बनाएंगे नहीं, वो कंसिस्टेंसी में ही फेल हो जाएंगे, देन दे विल नॉट इवन ट्राई फर्दर. करेक्ट, वो डिस्करेजिंग होता है ऑल टुगेदर कि ये हो ही नहीं सकता है अभी. तो आई थिंक इट विल बी बेटर. वो एब्सोल्युटली, मतलब वो जितना मोन्टाजी है, वॉइस ओवर बेस्ड, डिफरेंट विजुअल्स, वो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट देगा आपको ऑल टुगेदर. एंड देन फिर आप उसके अंदर घुसते चले जाओ, एआई सीखते चले जाओ, तो इट बिकम्स इजियर थ्रू यस, दैट. सो सनी, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट? आई एम ट्राइंग टू शॉर्ट फिल्म. मैंने भरत जी की देखी थी, तो उससे बहुत इंस्पायर हो गया था कि आई ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ इट. एंड जो भी स्टोरीज दिमाग में घूमती हैं, एक बार उसको करके देखना चाहिए. तो मैं भी अभी उसी चीज़ में कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स और इस चीज़ में फंस जाता हूँ बहुत बार. बट आई एम ट्राइंग टू यू नो कम आउट ऑफ इट यूजिंग पोस्ट प्रोडक्शन समहाउ. पोस्ट कैसे. प्रोडक्शन राइट नाउ, एआई फिल्म्स पोस्ट प्रोडक्शन पे ही बन रही है वो. आप आप जब जनरेट करते हो उसमें तो बहुत कुछ काट के हटाते हो, कोई शॉट पूरा खराब होगा बट उसमें 1 सेकंड होगा जो आपके काम का है, तो वो भी आपके फिल्म को बहुत अलग मीनिंग दे रहा है ऑल टुगेदर. और एक और चीज़ है, मुझे बाकी वीडियो एडिटर्स का नहीं पता, बट एक चीज़ मैं करता हूँ उसमें, जैसे मेरे पास 5 सेकंड क्लिप है, हम्म. बट मेरा नरेश जो डायलॉग है या वो 7-8 सेकंड तक जा रहा है, पर हम्म. वो मेरे पास वही एक क्लिप है, तो मैं वहाँ चला सकता हूँ. तो मैं जैसे आई थिंक जैसे सभी एडिटर्स करेंगे, या तो उसको स्लो डाउन कर देंगे हम्म. ताकि वो एक्सटेंड हो जाए. बट वो डाविंची में मुझे वो मिलता है एक ऑप्टिमल फ्लो करके, जो उसको अच्छे से स्लोमो में कन्वर्ट कर देता है. आप आई थिंक मैं. बेसिकली ग्राफ सेट कर पाते हो, तेज से स्लो टाइम कंट्रोल कर पाते हो उसमें. यस, यस. सो आई थिंक अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम कोई फेस करते हैं, तो दे कैन इवन थिंक ऑफ एक्सटेंडिंग इट. आई मीन आपको तो इवन पता हो अगर उसको. अगर पेड सब्सक्रिप्शन आप लेते हो प्रीमियर का, तो दे हैव अ एआई एक्सटेंडर नाउ. सो बेसिकली अगर आपका शॉर्ट 5 सेकंड का है, आपको 3 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए, सो प्रीमियर के अंदर का एआई उस शॉर्ट को 3 सेकंड और एक्सटेंड कर सकता है. जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि बहुत सारा एआई सीप इन कर रहा है इनटू एडोब सिस्टम्स. एक क्वेश्चन किसी ने ब्लेंडर के बारे में पूछा था बहुत पहले, सॉरी अगर इफ यू आर नॉट हियर, बट ब्लेंडर एंड एआई आई थिंक एक बड़ा सब्जेक्ट है, हम लोग उस पर भी आएंगे व्हेन इट कम्स टू 3D पीपल. एक और क्वेश्चन आया था अभी, अगर आपको उसका आंसर पता हो तो. अक्षय अलंकार हैज आस्क्ड कि कोई फ्री इमेज टू वीडियो टूल आपको पता है क्या जो एफिशिएंट है अभी, अगर आपको मिला हो. नहीं, मैंने एक्चुअली ढूंढा है, पर मुझे कोई मिला नहीं. लाइक करेक्ट, मतलब मुझे भी एफिशिएंट नहीं मिला है बेसिकली. देयर आर फ्यू. बट अक्षय, एक चीज आप ट्राई कर सकते हो, आप क्लिंग या हैलियो, हैलियो बेसिकली मिनीमैक्स भी आप उसको बोल सकते हो, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको है ना फ्री क्रेडिट्स देते हैं शुरू में. तो जब हम लोग भी कभी अगर हमें कुछ ऐसे ट्राई आउट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका टेम्प ईमेल करके एक वेबसाइट है जो आपको टेम्पररी ईमेल बनाने देगी. आप वो ईमेल आईडी टेम्पररी बनाओ, क्लिंग और हैलियो पे रजिस्टर करो, आपको 600-700 क्रेडिट्स मिलेंगे. तो आप जब सीखने के स्टेज पे हो, आप इन फ्री क्रेडिट्स को यूज करो. आप जैसे ही 600 क्रेडिट खत्म हो गया, नया ईमेल बना लो, तो आप अपना ईमेल भी एंगेज नहीं कर रहे हो, आप टेम्प ईमेल से बेसिक निकाल रहे हो, एंड वो आपको एक सेट ऑफ इमेज देगा टू प्रैक्टिस अपॉन. इसके बाद आपको अगर फील होता है कि आपका वो हाथ जम चुका है, तब आप किसी एक ब्लैंकेट बड़े एआई इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हो. जेमिनाई अभी 1 महीने के लिए सबके लिए फ्री है, वो आपको इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन दोनों देगा. सो आप जेमिनाई ट्राई कर सकते हो. एंड अपार्ट अभी अगर आपके पास घर पे कोई बच्चा है, तो जेमिनाई इज गिविंग 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन टू स्टूडेंट्स. सो उससे अच्छा इकोसिस्टम है नहीं. तो अगर आप किसी स्टूडेंट आईडी कार्ड को एक्सेस कर सकते हो, तो जेमिनाई का, गूगल का पूरा फ्लो इकोसिस्टम अभी के लिए फ्री है फॉर एन ईयर. तो उससे ज्यादा बड़ा कुछ चीज आपको नहीं मिलेगा शायद. सो आप वहां ट्राई कर सकते यस, यस. हो. सनी, मतलब ऑन अ क्लोजिंग नोट, मैं आपसे जो बेसिकली आपका टॉपिक भी था, बट उसके बियॉन्ड समझना चाह रहा हूँ. एंड अगेन ये उन सबके लिए है जो लोग स्टार्ट आउट कर रहे हैं. अगेन, कि वो बेसिक 2-3 चीजें क्या है जो आपको सीखनी पड़ेगी विथ एआई आपके अकॉर्डिंग, एंड इजीली उसको अचीव करने के क्या क्या तरीके हैं, एंड ऑल्सो कि किस तरह से एक्सपेक्टेशंस को हम लोगों को कितना कंट्रोल करना है एट दिस मोमेंट अकॉर्डिंग टू यू, एंड हाउ वन कैन स्टार्ट एफिशिएंटली. आपने एक मॉन्टाज वाला आइडिया बताया, बट इफ यू कैन गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि जो शुरू कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं इसके बारे जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर किसी को शुरुआत करनी है, सबसे पहले दे शुड ओनली ट्राई ऑन द स्टोरी जिसमें कंसिस्टेंसी कैरेक्टर की ना हो, सीन्स डिफरेंट हो.
क्योंकि बिकॉज हम्म उसमें भी बहुत सारी लर्निंग लेने के लिए है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, देन साउंड इफेक्ट्स हैं। तो आई थिंक उनको सबसे पहले ये चीज़ सीखना चाहिए विद वेरी शॉर्ट वीडियोस, 10 seconds 20 second वीडियोस। दे शुड ट्राई एंड लर्न दिस एंड देन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज देन आई थिंक अगर उनको थोड़ी अच्छी चीज़ बनानी है देन उनको सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे, देन बिकॉज यही मार्केट बन गया अभी। हम्म तो पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, कोई जिसमें जो उनको इजी लगता है वही एडिटर यूज़ करें। जस्ट यूट्यूब पे जो रेकमेंड होता है वो नहीं, जो उनको इजी लगता है, जो उनको समझ में आता है, दे शुड करेक्ट। यूज़ दैट। एंड और आई थिंक साउंड के लिए बहुत प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक साउंड इवन यूट्यूब पे रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक पड़े हैं, लाइक स्पेशल इफेक्ट्स पड़े हैं, सब कुछ है वहाँ पर। अगर स्टार्ट करना है तो आई थिंक एवरीवन कैन यूज फ्रॉम देयर। एंड इफ दे थिंक दैट उनकी चीज बहुत अच्छी बन रही है, देन ओनली दे शुड स्पेंड मनी ऑन दिस। एंड आपका जर्नी अभी तक कैसा रहा है? कब टेक फील्ड छोड़ करके आप फुल फुल फ्लेजेड एआई फिल्म मेकर बनने का सोचते इसमें नहीं छोड़ा। अभी मैं अभी मैं हो? बट काम कर रहा प्लान। हूँ। वीकेंड आई जस्ट डू दिस एज अ पैशन फॉर नाउ। बट यार एक बार एक दो बार दिमाग में आया कि यार कुछ एडसेंस वगैरह वाला कुछ हो सकता है क्या। बट आई थिंक अभी मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है। जब मैं अच्छे से मुझे चीज़ें पता होंगी, जैसे मैं कुछ चीज़ सीखी थी, आपने कहा नहीं ये तो नोटबुक है, इसमें ये तो ऑलरेडी रिटन है। तो ऐसे आई थिंक बहुत सी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता अभी, तो आई ट्राई एंड एक्सप्लोर। एंड अगर आपके ये कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहे तो कुछ ना कुछ और सीख जाऊंगा। आई होप इट ग्रोज। थोड़ा सा मेरा आप एड प्लग इन कर दो, बाकी लोगों को बोलो कि और ज्यादा पार्टिसिपेट करें इफ इट हैज हेल्प्ड यू इन एनी वे, बिकॉज मतलब दैट विल इंस्पायर अदर्स टू जॉइन द कॉन्टेस्ट। मैंने आपको इसीलिए थैंक यू बोला था बिकॉज मुझे बहुत हेल्प मिला है। कोई चैलेंज मिलता है देन यू पुट एन एफर्ट, तो बहुत हेल्प हुई है। एंड आई थिंक अगर आप डिस्कॉर्ड वगैरह में कोई ग्रुप वगैरह बनाकर कुछ डिस्कशंस की हम आपस में सब लोग बात कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम लोग डिस्कॉर्ड मतलब अभी तुरंत वी विल सेट इट इन मोशन, एक डिस्कॉर्ड सर्वर लेट्स क्रिएट जहाँ पे हर सारे आइडिया शेयरिंग हो पाए, बिकॉज आई दैट वाज इन माय हेड, वो दिमाग से छूट गया था कि आप बोल रहे हो, तो आई थिंक वी शुड डू इट राइट अवे। मैं बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, विल क्रिएट अ डिस्कॉर्ड सर्वर एंड जितने लोग इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो भी नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्लेस ऑल टुगेदर। सो थैंक यू फॉर द सजेशन ऑल्सो, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल, क्योंकि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस था, 2 दिन पहले हमने कनेक्ट किया था एंड आई नो कि आपको ऑफिस वगैरह भी रहता है, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड टॉकिंग टू अस। इट वाज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू। आई होप और ज्यादा कन्वर्सेशन आगे फ्यूचर में जारी रहे। आपको कुछ भी नया मिले आप हमें बताओ, हमें कुछ भी नया मिलेगा हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच सनी। हाँ, एक बहुत अच्छा सेशन रहा है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कलाइडोस्कोप कलाइडो मीडिया वर्क्स ने क्वेश्चन पूछा, रनवे और क्लिंग विच इज बेटर? मैं और सनी वो डिस्कस कर चुके हैं, क्लिंग एनी डे, बट रनवे में देर इज अनदर फीचर जो आज कल लॉन्च हुआ है, दैट इज एक्ट 2। उसको आप ट्राई आउट करो। वन फीचर इन रनवे इज बीटिंग ऑल इट्स प्रॉब्लम्स, बट अगर आप जनरल में क्लिंग और रनवे ढूंढ रहे हो तो क्लिंग इज मच बेटर देन रनवे एनी डे। एनीवे सनी, थैंक यू सो मच। आई जस्ट क्विकली टेक सम आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज रहे हो। थैंक यू सनी फॉर ज्वाइनिंग। आई जस्ट क्विकली इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को, एंड आई लर्नड अ लॉट टॉकिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू। सो इफ ऑल थ्री ऑफ यू आर हियर, थैंक यू सो मच इन टुगेदरनेस for taking our time to talk to me. It was really wonderful. And we will just quickly take some questions. Bye, Sunny. बाय बाय। सो गाइस, वो कुछ भी आपके क्वेश्चंस जो आप जितने भी कमेंट पे डाल रहे हो, आई फाउंड आउट वन क्वेश्चन दैट आई कुड नॉट आंसर वाज हर्ष अंडरस्कोर HXB. आई होप ही इज स्टिल देयर. He had asked that how to earn money with this skill. Boss, this is going to be the biggest money churner in the days to come. And this is going to be the biggest money churner for every sort of professionals. अगर आप इंडिविजुअल क्रिएटर हो, आप अपने चैनल पे व्यूज बढ़ाओ, देर इज नो स्टॉपिंग राइट नाउ। जो भी एआई पे हो रहा है, इट्स ऑल गोइंग टू बी फेनोमेनल। आप अगर थोड़े से ट्रेंड प्रोफेशनल हो, आप अगर मतलब कहीं सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, देयर आर एजेंसीज जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो टू फाइंड अ जॉब एज वेल. We also as an agency are opening up a lot of opportunities in very near future. और मैं आपको इंडस्ट्री के अंदर से बता रहा हूँ, अभी एड इंडस्ट्री एक समय के बाद सिर्फ एआई पे फंक्शन करने वाली है। ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स एआई पे शिफ्ट कर चुके हैं, हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। सो आई कैन वाउच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. सो अगर आप इस वक्त एआई कंटेंट क्रिएशन में एंटर करते हो, आपको अगर 5-6 महीने भी लगते हैं इसको अच्छे से सीखने में, आप इसको उस लेवल तक मोनेटाइज कर सकते हो जो आप नहीं इमेजिन कर रहे हो, बिकॉज एक एक इंडिविजुअल का वर्थ बहुत ज्यादा होगा आफ्टर अ पॉइंट. Nilesh Toshiwal had asked Halio or Seedream.
Are you talking about C Dance or are you talking about C Dream? मतलब both I think are from ByteDance altogether. Because C Dream I have not tried, but अगर आप C Dance की बात कर रहे हो तो C Dance is much better than Halio. Halio and Kling are in the similar category. अगर आप वैसे पूछ रहे हो तो. Thank you so much for being here, Shami Verma. And also, Halio versus Cdance. Yes, Nilesh. So basically, Cdance is much better than Halio. अगर आप quality wise पूछोगे, Cdance में एक feature है जहाँ पे वो एक ही prompt से 3-4 cuts बना सकता है. तो character consistency in Cdance is much superior. Halio is good for dynamic motions, but Cdance is much better than Halio if you ask me. अगर आप एक चुनना चाहते हो तो. Any other question, guys? Just shoot it out. I'll quickly try to do a rapid answering of whatever I have missed till now. There is uh, yes, for sure. You can DM me, Sachin, for any further discussion. Always available to discuss or answer any question. Silicon Valley is looking at a bulk AI video worth $15 billion. Not only Silicon Valley, even India for that matter. Like I'm telling you, it's going to be a very different space, and that is something that I in general wanted to discuss also. That right now, जहाँ पर हम हैं, हम एक नई इंडस्ट्री बनाने वाले हैं. Let's not commit the same mistakes जो बॉलीवुड ने किया या पुराने इंडस्ट्री ने किया. We want the information to be open to all. अच्छे creators निकले as a group we do better because this is one AI content industry is going to be huge in the coming times, and it can only be great if the viewers, the creators, the investors all are on the same page, and that is what AI Theatre is trying to do, that we bring in everyone from audience to people who finance to people who create. Reason is a ecosystem की एक जरूरत है to create an industry, and that is the only goal of AI Theatre currently. Can you provide CDAN's link? I'll try to send. I tried same prompt from your reel in View 3, but result was not the same. Naveen, this might happen sometimes क्योंकि AI जो मेरा interface है वो मेरी तरह से train होता जाता है to some extent. So sometimes this discrepancies might happen. अगर मैं ही वो prompt दोबारा डालूंगा तो शायद मुझे दूसरा प्रॉब्लम मिले मेरे वीडियो में. सो हम लोग कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि किस वर्ड की वजह से वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है और वो वर्ड को शायद रिप्लेस करने की कोशिश करें. What is the AI Theatre video production agency? AI Theatre is, matlab in simple terms, it is a video production agency, but we are also trying to create a sort of a vibrant community around us, जो कि कल को film screening से लेकर like you know, it is more to celebrate the artist. हमारी production house पिछले 7 साल से है, so that already existed. AI Theatre specifically is to like a stage for all the AI artists, at the same time a stage for us. So there is like that ways the concept of AI Theatre is broader. I would love to explain it on the story sometime. In fact, in our highlight, there is a story that explains our journey. We'll get to know a lot more about AI Theatre along. Can you provide CDAN's link? It does not allow sign up. CDAN's का link confusing है. बहुत सारे links हैं CDAN's के actually. उनमें से कौन सा सही वाला है मैं भी confuse होता हूँ, but मैंने bookmark करके रखा है. So I'll send you the link of CDAN's altogether. Anything else? What is the best LoRa trainer? For digital cloning. ये आप AI avatars की तरह से पूछ रहे हो, like where you can train your character, Nilesh? Is that the question, that how you can create your own virtual character that can talk instead of you? Is that the question? Nilesh, we are based out of Mumbai. Kaleidoscope Media, yes, we are based in Mumbai. And Nilesh, just clarify a question ना कि आप AI avatars के बारे में पूछना चाह रहे हैं, or what is the question? Which AI, according to you, is best for creating an idea into views? Naveen, basically, it is genuinely a set of AIs. राइटिंग के लिए आप क्लॉड जीपीटी यूज कर सकते हो. जब आपने लिख लिया है तो आप उसका ब्रेकडाउन इनके साथ ही कर सकते हैं. जब ब्रेकडाउन हो जाती है तो आप इमेज जनरेशन, मिडजर्नी, फ्लक्स, हिग्सफील्ड, इन तरह के एआई से आप इमेज जनरेट करते हो. फिर जब इमेजेस निकल गई तो आप एक वीडियो जनरेटर पे जाते हो. वीडियो जनरेटर में VO3 है, VO क्लिंग है, रनवे, सी डांस. आप यहाँ पे अपने इमेज को इनपुट करते हो और उसको एनिमेट करते हो, उसमें मोशन डालते हो. एंड देन इवेंचुअली ये जो शॉर्ट्स निकलते हैं उनको आपको किसी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में साथ लाना है, म्यूजिक ऐड करनी है, एसएफएक्स ऐड करनी है. दैट बिकम्स योर फाइनल प्रोसेस ऑल टुगेदर. सो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एआईज लगेगी. कोई सिंगल एआई जो अभी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको दे रहा है वो VO3 है. VO3 में 8 सेकंड के पूरे कंप्लीट ऑडियो प्लस वीडियो जनरेशन आपको मिलेंगे. फिर भी आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी. सो उसके लिए फिर आपको किसी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा. Which AI is the best according to you? You can use CDANs for all the major video generators on Replicate. Replicate. Sunny, is Replicate like a place which combines AI? I think it is. I have not used Replicate.
यूट्यूब पे अब एआई वीडियोस का बुरा हाल होने वाला है। सी ऑनेस्टली, यूट्यूब का जब आप पूरा का पूरा पॉलिसी पढ़ोगे तो इट इज अगेंस्ट लो एफर्ट कंटेंट। एंड आप लो एफर्ट कंटेंट वो भी है जहां पे मैं एक मूवी चलाता हूँ और पीछे से उसकी स्टोरी सुना देता हूँ। तो एनी कंटेंट जिसमें एफर्ट नहीं लग रहा है उसके ऊपर ये हैमर है। उसमें एआई कंटेंट टॉप लिस्ट पे आता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आप एक एआई का वॉइस ओवर जनरेट करके रैंडम क्लिप चिपका करके उसको यूट्यूब पे डालते हो, वो सारी चीजें डिमोनेटाइज होंगी। बट जो भी कंटेंट ओरिजिनल है या हाई एफर्ट कंटेंट है, एआई के जो टॉप कंटेंट है, वो अभी भी मोनेटाइज रहेंगे। देयर इज अ कंफ्यूजन, बट वो कंफ्यूजन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। What is the best tool for upscaling images and video? Upscaling के लिए I'll tell you the exact name. E से start होता है, I forgot, Topaz I think. मैं नाम गलत बोल सकता हूँ, so please don't hold on to it. But मैं ये रिसोर्स ग्रुप पे डाल दूंगा कि अपस्केलिंग के लिए अभी दो तीन कौन से अच्छे वाले सॉफ्टवेयर। Rest, I started YouTube channel on digital safety where I generated an AI avatar to talk about the video. It's coming out in few seconds. Only what can be done for longer video to make videos bigger. Unavoidable harm. बेसिकली वही मैं समझा रहा था कि आपको का कॉम्बिनेशन आपको फाइनली एडिट करना पड़ेगा। वो एक बार में पूरा का पूरा 2-3 मिनट का वीडियो शायद आपको ना मिले। सो यू कैन ट्राई डिफरेंट पोजेस और यू कैन जनरेट दोज क्लिप्स बैक टू बैक एंड आप एडिटिंग पे थोड़ा सा उन कट्स को छिपाने के लिए कुछ बी रोल्स ऐड कर सकते हो। तो आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो जो एज अ सॉलिड होल प्रोडक्ट लगेगा। बट वो अभी के लिए सारे जनरेशन ऑन ऑल सॉफ्टवेयर समवेयर इज लिमिटेड टू 5 मिनट टू 10 मिनट। आई थिंक सीडांस इज द ओनली वन दैट गिव्स यू लॉन्गर जनरेशन ऑल्सो। यस सर, टोपाज एआई इज व्हाट आई वाज मीनिंग। टोपाज एआई आपकी अपस्केलिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सोनू कुमार, न्यूज चैनल विद एआई अवतार इज अ गुड आइडिया, बैड आइडिया? राइट नाउ एनी आइडिया विद एआई इज अ गुड आइडिया। तो अगर आपके पास एक एआई अवतार है जो आपने क्रिएट कर लिया है विच इज डिलीवरिंग डेली न्यूज, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ बिकॉज आपका प्रोसेस आसान है। आपको एक बहुत हाई प्रोडक्शन में समवन इज डिलीवरिंग न्यूज। एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर को आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो मैटर करता है। आप किस रैपर में वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो बहुत मैटर नहीं करता है। सो वही न्यूज को आप एक एआई एंकर से बुलवा दो, उसी न्यूज को आप किसी वे में दो कैरेक्टर के बातचीत में डाल दो, इट वर्क्स, इट टोटली वर्क्स। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सोनू, यू कैन गो अहेड विद दैट। एआई अवतार आपको क्रिएट करना है तो आप हेजन यूज कर सकते हो या आप हीड्रा यूज कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। So Nilesh, upscaling video, Topaz AI, you can do that. Little Laddu, ChatGPT is great help, better than taking subscription on Midjourney. It depends. ChatGPT has a very specific way of generating images. Midjourney का अलग तरीका है। तो आप कौन सी स्टोरी पे यूज कर रहे हो? आप अगर बहुत ही कैजुअल स्नैपी कंटेंट के लिए यूज कर रहे हो, ChatGPT है ना, आप Gemini भी ट्राई कर सकते हो। Google images are much more realistic than GPT images. And upscaling, increasing quality. Thank you, Nexus, so much. Love you too. And yes, we are. So, are there some questions in the question panel? I will just quickly check. No questions yet. So, thank you guys for joining. It was a longer session, and I hope I could answer. If you have not joined it yet, हमारे Instagram पे एक private server है, group chat. Please join it. Open link है. मैं story पे भी वो link डालता हूँ. We will be adding all the discussion के जो minutes हैं, कुछ भी चीज आपने मिस आउट किया है, आप बीच में आए हो, किसने क्या बोला था, वो फिल्टर डाउन करके हम सारे रिसोर्स कोशिश करेंगे कि ग्रुप पे अवेलेबल करें। एंड द वीडियो ऑल्सो आई हैव टू चेक हाउ इट फंक्शन, बट अगर पॉसिबल होगा तो दिस एंटायर लाइव विल ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर यू गाइज टू एक्सेस। थैंक यू so much for joining in. Nilesh, yes, we will be hiring. We are starting a hiring process very soon. आप पेज फॉलो करो, you will get to know. हम हायर भी कर रहे हैं, also we are asking people to register on a freelance network. So अगर आप मुंबई में नहीं हो, कहीं बाहर से भी काम करना चाहते हो, तो we are trying to create structures जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, and you can start something with related to this. So yes, and also thank you so much guys for today. Please let me know in the feedback if it helped or not. If it did help, we will do this again because this is completely आप लोगों के लिए ही है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये आपको हेल्प करता है तो मुझे आप प्लीज बताना, एंड फिर नेक्स्ट सैटरडे हम लोग उसको करेंगे। अगर ये हेल्प नहीं करता है तो वो भी बताना, नेक्स्ट सैटरडे हम ये नहीं करेंगे। सो बोथ द थिंग्स वर्क फॉर अस। सो प्लीज लेट अस नो हाउ वाज द सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। I will share my group channel for sure, Manish. I'll do that. Thank you so much, guys. I'll take your leave now. Have a good day ahead. Have a good weekend. Thank you so much for joining in. Goodbye.